So, a very good morning to all of you present over here. I, Raghib Imtiaz, on behalf of Mechanical Engineering Association, welcomes you all to the Alumni Talk. And moving forward, as we all know that we are tackling another wave of pandemic, and this time it is very crucial to stay focused and be updated with the latest job trends available in India as well as abroad that are available in our domain. So, we welcome you all to the extremely vital talk. We are about to experience how to go land to sky, and we are going to know about the career opportunities in airlines. And to discuss this in detail, we have with us our esteemed senior, Mr. Ashish Kumar Sahu, who has completed his BE Mechanical from SSIPMT Raipur itself in 2019. He works as airline interview coach at Aviation Life. He also worked at Indigo Airlines Pune base for 1.5 years. He has also cleared FCAT 5 times, and he has given 16 attempts for SSB, but unfortunately he was not able to clear it. Then he decided to have his own startup with his old interview experience. After all those efforts, he started online coaching in YouTube platform. He started with zero amount with just small phone. Till now he has coached more than 100 people and 40 plus students who are now working in Indigo Airlines. I would like to invite sir to share his experience and through guide us, please sir. Okay. So first of all, I want to thank to all, especially Shankaracharya Group, Tripathi sir, HOD sir, respective other faculties, MRK sir, Mayank sir, and the coordinators, Hitesh sir, and all the faculty who have started this kind of initiative from our college. I saw the new page. Earlier, when I was in my college, there was no new page. There was only website. Now the things have been changed. They're especially active in the websites and all, and especially Instagram. Well, now the things have been changed. Earlier the pandemic was there. Now earlier pandemic was not there. Now the pandemic is there. So the education system has been changed. People are not going to college. They are just sitting in the home and they're studying. So I guess the 5 minutes are over. So those who have joined, they join, and those who are not, we cannot wait for others. Right. The main focus is job, and I will suggest that the meet has been divided into few parts. The first part is my college life. Second part is the placement, my placement, how I get placed and how I clear a lot of interviews. And the third part is that how I started my startup. And the fourth point is that your doubt clearing session, something like that. So I'm very much thankful to you all, especially my parents are also watching this, and my family members, my students, and others people who wanted and who are interested to join airlines. As simple as that. The main focus is that you will get job, and this is all about job because we are all our students. And if we are students, some are working. So as simple as that. So simple thing is that we all need a job, right? So what I saw is that starting from the college life. So when I was in college, this talk will be bilingual because there are many people who don't understand Hindi. There are many people who don't understand English. So this talk will be bilingual. And sometimes I will speak English, sometimes I will speak Hindi. So start karte hain college. So my college was batch 2015 to 2019, right? So there are few things which I will request that before the meet start. The first thing is that please uh, be with me for the next 45 minutes. Second thing is that if there's a network connection, agar light chalega ya kuch ho gaya, so please try to cooperate. I will be back within the 1 minute. So ye cheeze hain. Third thing is that please don't interrupt while I speak. Fourth thing is that if you're having any doubts, do write it. And as simple as the session ends, do ask the doubts ki ye kya hai, wo kya hai, aisa waisa ye. I will literally I will coach you from basic to advanced, right? And this is what I'm doing from very long time. Earlier I was doing it for free, but things got changed. People, they don't give respect to the free things, right? When you create a value, then people started कि यार हाँ हमें join करना है, ये करना है, वो करना है, ये चीजें. So start करते हैं. Well, I started took admission 2015. Let me take 1 year back, है ना, उसके पीछे क्या was वो. I started मैं schooling करता था मैं. So starting से I was interested to join defense services. Defense was my only motto just because my father was there. तो जाहिर सी बात है कि जिसके पापा आर्मी में होते हैं तो उनको आर्मी ज्वाइन करने का मन करता है, लाजमी है.
किसी के पापा एयरफोर्स में होते हैं तो उन्हें एयरफोर्स ज्वाइन करने का मतलब ये भी लाजमी है. सो थिंग्स वर लाइक दैट. सो मेरा भी मन था ज्वाइन करने का, बट थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड. एग्जाम था, एग्जाम क्लियर किया मैंने, बट द मेन चैलेंज वाज एसएसबी. एसएसबी वाज नॉट अ चैलेंज यार, मेरी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती थी उसके साथ. राइट, आई नो दैट आफ्टर गिविंग 10 अटेम्प्ट्स मुझे समझ नहीं आएगा क्या हुआ. मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ क्या दिक्कत थी. मेरी पर्सनैलिटी में कुछ कुछ खामियां थी जो आर्म फोर्सेस को नहीं चाहिए थी. उन्हें ऐसे आदमी चाहिए था जो उन्हें फॉलो करे, जैसा वो बोले वो करे. बट एट द एज ऑफ 25 26 राइट नाउ, I don't want to join our forces because 27 की एज में मैं लेफ्टिनेंट नहीं बनना चाहता. मैं 22 साल की उम्र में बनना चाहता था, 22 से 23. दैट्स इट. तभी तो करियर आगे होगा, नहीं तो फिर देयर इज नो करियर आई गेस. ये चीजें. सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई क्लियर्ड 5 to 6 टाइम एफकेट, वन टाइम सीडीएस एंड एसएससी सीपीओ, वेरियस एग्जाम्स आई क्लियर्ड. उसके बाद आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन एनी हाउ. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती गई, कभी स्क्रीन आउट, कभी कॉन्फ्रेंस आउट होता गया. देन आई डिसाइडेड कि नाउ लास्ट राउंड में खत्म हो चुका है एंड नाउ मूव ऑन टू दिस थिंग. While starting with the class 12th, I failed in class 12th. As simple as that. What I have done, I will tell you each and everything. I failed in class 12th. Uh, 2014, 2013, I got pass out, and 2014, in 2013, I got failed. Then I repeated the class to class 12th from one school called Harishankar Shukla Higher Secondary School, जो कि बंद हो गया आज के डेट में. That school got closed. So anyhow, I managed to complete the class 12th. Anyhow, I scored 80%. Earlier, it was 56%, I guess. So I failed in class 12th. I repeated the class 12th. So from there itself, I got an importance कि यार हाँ ये चीज important है. अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा तो might be chances कि I might not get. और लोग रास्ते चलते बोलते थे, ओहो देखो क्या हो गया, 12वीं फेल जा रहा है, ये वो नॉर्मल थिंग. आई विल बी डाउन टू अर्थ. राइट, द थिंग्स हैव बीन टेकन प्लेस विद मी. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. सो पीपल यूज्ड टू टॉन्ट कि ये देखो क्या हो गया, 12th में फेल हो गया, ये तो ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, पापा के पैसों को इसने ऐसे ही उड़ा दिया, ये है वो है, समथिंग लाइक दैट वाज गोइंग ऑन. सो एनी हाउ, विद highly dedicated, I joined. I complete the class 12th, and that was the biggest challenge of my life. Anyhow, managed to complete the class 12th. Class 12th खत्म होता है, उसके बाद I gave various exams. I was not that much talented, as simple as that. I'm average student. So I gave various exams. IIT वाईआईटी में रैंकिंग इतनी आई कि मुझको आज तक याद भी नहीं कितनी बड़ी रैंकिंग थी. 2768, something like that. Although I was not made for that thing, I think so. So I gave PET exam, as simple as that. As you all gave PET exam, we all are graduates. Anyhow, I managed to get Shankara College. My rank was approx 2000. I don't know, 2000 was approx. So I joined Shankaracharya Institute, and I took admission in BE Mechanical Engineering in 2015. And from starting onwards, it was very much clear that I have to join forces. In 12th, I was not able to clear NDA exam. I gave 3 times NDA, but I was not able to clear it. So it was very much clear that कि यार करूंगा तो मैं यही करूंगा. Nothing like that. कुछ इधर उधर का मैंने सोचा ही नहीं कभी दोबारा. उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं. मैंने एक ही चीज को टारगेट किया कि यही करना है मुझे. Reason was there's one more thing. I was getting government engineering college, but I joined Shankara because वहां पे प्लेसमेंट नहीं थी. और someone told me कि you will get good placement. And there is one more thing that कि इंजीनियरिंग की डिग्री तो मैं वहां से ले लेता, लेकिन there are very high chances कि अगर मैं किसी सरकारी कॉलेज में जाता तो मैं फिर पढ़ाई नहीं करता. मेरा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता उस समय. So my father forced me to do admission in Shankaracharya College. Anyhow, मुझे नहीं पता था कॉलेज के बारे में, बट मैंने मन बना लिया कि चलो ठीक है, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी करें. तो मुझे नहीं पता था कि this college very that much good. So I joined the Shankaracharya Institute. The few things which I like is the placement cell. They give their lot of effort. Even though क्योंकि मैंने हर एक चीज वहीं से सीखी है, they give a lot of effort for the student की वो प्लेस हो जाए. Anyhow, even though मेरा एक दोस्त था अभिषेक सिंह करके, वो भी एक स्कूल में टीचर के तौर पे प्लेस हो गया था. सैलरी भली कम थी, लेकिन प्लेस जरूर हो गया था. ये चीजें हैं. सो प्लेसमेंट सेल वाज देयर. सो मुझे ये चीज थी कि यार नौकरी तो एटलीस्ट मिल जाएगी मुझे. एनी हाउ, तो मैं शंकराचार्य ज्वाइन कर लेता हूँ. और एक चीज और थी, वो डिसिप्लिन था. कॉलेज में ये ऐसा कॉलेज नहीं था कि घूमा, काट दिया टाइम, आ गए वापस. नथिंग लाइक दैट. हाँ, थोड़ा बहुत लोग करते हैं बंक क्लासेस, लेकिन द थिंग्स वर नॉट लाइक दैट. द क्लास इज वेरी मच डिसिप्लिन एज कंपेयर टू अटेंडेंस में भी जो था कि यू हैव टू बी देयर. तो ये सब चीजें मेरे पापा को बड़ी पसंद थी, एंड ही मेड मी ज्वाइन द शंकराचार्य इंस्टीट्यूट एट 2015, 1 जून 2015. सो आई ज्वाइंड इट. एंड उसके बाद ज्वाइन करने के बाद होता है क्लासेस चालू. एंड फर्स्ट ईयर एंड एनी हाउ मैंने 70 पर, मैं टारगेट 70 था, मेरा टारगेट कभी 80 था ही नहीं.
70% था। उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अगला टारगेट था कि एनसीसी ज्वाइन करनी है। सो आई ज्वाइन एनसीसी एयरविंग, क्योंकि मुझे पता था कि यार इसमें जो है मुझे फायदा मिल सकता है इफ आई ज्वाइन एनसीसी एयरविंग। सो आई ज्वाइन एनसीसी एयरविंग and side by side I was completing my NCC also, and side by side I was completing my graduation also. So there are very challenges कि कभी टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हो गया, so anyhow managed. Time management plays a very important role. Anyhow managed कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, anyhow managed to complete both the things. I faced a lot of challenges, but faculties were very supportive. Pratik sir जो कि नहीं है अभी, अभिनव सर, MRK सर, every teacher was very supportive. Yeah, sometimes कभी attendance का issue होता था, लेकिन no issues. These are the small things. एंड टुडे आज जहां भी हूँ इज जस्ट बिकॉज ऑफ शंकराचार्य कॉलेज, क्योंकि अगर उन्होंने उस समय वो डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया रहता तो हो सकता था कि मैं कैजुअल हो जाता। मेरे बहुत से दोस्त कैजुअल हो गए, कुछ लोग को नौकरी नहीं मिली, कुछ लोग आज आज तक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई गेस 1-2 साल वो और करेंगे, उसके बाद शायद से कुछ नौकरी ज्वाइन कर ले। एंड सम पीपल दे आर प्रिपेयरिंग टिल नाउ, एंड कुछ लोग रास्ते से भटक गए, कुछ कहीं और चले गए। सो कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in personality development, in groomings, and each and everything. So what I suggest is that if you are from the college, please do what teachers say. As simple as that. If he said this, do this. If he said that, do that. If he said this, do this. As simple as that. What they say, do it. This is my request. What I have done. मैंने उन्होंने जो बोला मैंने वो किया यार. Each and everything which I did. What college faculty से गलत थोड़ी ना बोलेंगे कि यार वो मत करो. No, what they do, what they speak is just do it. और एक चीज और, कॉलेज एफर्ट लगा सकता है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन अगर आपका मूड ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो नथिंग लाइक दैट। कॉलेज एक सर्टेन लेवल तक एफर्ट लगाएगा, बियॉन्ड द उसके ऊपर बियॉन्ड जाए तो आपको लगाना पड़ेगा। कॉलेज डिडंट प्लेस मी फॉर एयरलाइंस, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मैंने खुद एफर्ट लगाया, मैं खुद गया, मतलब ट्रेन पकड़ के एयरलाइंस का इंटरव्यू देने के लिए, किसी को नहीं बताया, सोचा था नौकरी लगेगी तब बताऊंगा करके। ये चीजें हैं। सो एनडीए ज्वाइंट है ना, एनडीए, सो ही माइट बी अ डिफेंस एस्पिरेंट। ये चीजें हैं गाइस। सो दिस इज हाउ कॉलेज बिगिंस। आई कंप्लीटेड फर्स्ट। और एक चीज और, मेरी कभी बैकलॉग नहीं लगी। मेरी दोस्ती भले ऐसी संगति दोस्तों के साथ थी, लेकिन आई नेवर हैड अ बैकलॉग। भले कम परसेंट है, लेकिन बैकलॉग कभी लगने नहीं दिया, क्योंकि मेरे उसके पीछे एक चीज थी कि स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप। साल का जो है कुछ 34,000 के आसपास रुपए मुझे मिलता था, 34,000 के आसपास। तो उसमें एक शर्त थी, अगर बैकलॉग लगी तो स्कॉलरशिप गई। सो मेरा ये टारगेट था कि अगर मैं 24,000 जितना मुझे स्कॉलरशिप मिलता है इकट्ठा कर लूंगा, साल का 4 साल का 1 लाख रुपए तो बचा लूंगा मैं करके। तो मैंने बचा लिया, एंड हाउ मैनेज टू सेव दैट 1 लाख रुपीज। ये चीजें हैं। सो कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इवन दो what demand of airlines, demand of multinational, they don't want 92%, they don't want 82%. This is my personal opinion. If someone is getting hurted, please, what I'm telling today is my opinion, it's my side of view, what I have saw from my side, not from others, my perspective. I'm not telling you to copy it. I'm just setting you an example that this thing can also take place. So college plays a very important role, and placement cell plays a very important role. Second thing is that कॉलेज विल टेल यू कि ये डू दिस, आपको ये करना है, इंग्लिश सीखनी है, ये सॉफ्टवेयर सीखना है, ये करना है, वो करना है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट यू पार्टिसिपेटेड और नॉट। कॉलेज तो डायरेक्शन देगा ना, आपको करना है ना आगे कि क्या करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो एवरीडे, या भुवनेश, सो ये चीजें हैं। सो नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग, माय फैकल्टीज डजंट नो, नोबडी नोज कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि एफकेट में वो क्वेश्चन आते थे। क्वांट में मैं ध्यान नहीं ले पाया, मैंने रीजनिंग में ज्यादा फोकस किया। आई स्टार्टेड फोकस ऑन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो कॉलेज जैसे ही खत्म होता था, 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास छुट्टी होती थी, 3 से 5 जो है मैं रीजनिंग बनाता था लाइब्रेरी में। शैंडिलियर सर करके लाइब्रेरी में है, तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। 3 साल 4 साल कोई लड़का रीजनिंग बनाएगा तो इफेक्ट तो करेगा ही ना। व्हाट देयर इज वन मोर थिंग व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक इज दैट कि वो एग्जाम के एक दिन पहले, इंटरव्यू के एक दिन पहले तैयारी करते हैं, रेज्यूमे बनाने नहीं आता उनको आज भी। I coach people, post-graduates हैं, MBA graduates. I'm not MBA. I coach people who are MBA. They don't know how to make CV. As simple as ये education system है आज का। ये चीजें, they don't know how to make CV. I coach people. मैं 12वीं के लड़कों को कोच नहीं करता, मैं कोच करता हूँ graduates, post graduates, and this above level. All are between 24 to 27. इन्हीं एज के बीच में पढ़ाता हूँ लोगों को, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये चीजें हैं। So college plays a very important role in grooming. प्लीज डू व्हाट फैकल्टी से, नो कोई तुम्हें गलत नहीं बताएगा यार, राइट? जूनियर्स, सीनियर्स, सॉरी अगर मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन टीचर व्हाट दे से प्लीज डू इट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई हैव डन इट। फोकस ऑन बोथ द थिंग्स, कॉलेज मार्क्स बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड
रीजनिंग शुरुआत से बनाओ यार। देखो कोई 6 महीने पहले रीजनिंग बना रहा है, कोई 4 साल से बना रहा है, सो फर्क पड़ेगा ना। ये जो 6 महीने वाला ये जो है कम टाइम ज्यादा लेगा, 2-4 मिनट लेगा, बट द पर्सन इज मेकिंग 4 ईयर, ही विल मेक द रीजनिंग इन जस्ट 20 सेकेंड्स। मैं एफकेट के पेपर को देखता हूँ, पहले रीजनिंग बनाता हूँ, 30 क्वेश्चन रहते हैं, 32 क्वेश्चन के आसपास, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो 32 क्वेश्चन रहते हैं, आई जस्ट मेक इट इन 10 मिनट्स, एज सिंपल एज दैट। ये होती है स्पीड, 4 साल की स्पीड है ये। फिर वो लोग बोलते हैं एफकेट क्लियर नहीं होता, कैसे करें, कुछ टिप्स दो। ये चीजें, टिप्स आर नथिंग लाइक दैट, हार्ड वर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज सिंपल एज दैट। सो आई पार्टिसिपेटेड फ्रॉम वेरी अर्ली एज, आई पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन। नहीं आता तभी पार्टिसिपेट करता था, लेकिन हाँ कॉलेज के एग्जाम में कभी फोकस कोई गड़बड़ी नहीं होती। 70% एनी हाउ खींच तान के ले आया, एक बार 62 आ गया था, गलती हो गई थी मेरी, लेकिन एनी हाउ आई मैनेज टू स्कोर दैट मच मार्क्स। स्टार्टिंग से फोकस दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कॉलेज ने तो दिया ही दिया, बट मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। सर्टिफिकेशन कोर्स, आई डिड लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स, इतना किया कि याद भी नहीं है कि ये चीज है। दिस इज माय फाइल एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। फाइल दो दो रखा हूँ, क्योंकि एनी हाउ व्हेन आई वेंट फॉर एसएसबी आई यूज्ड टू शो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव डन। सो ये चीजें हैं। कॉलेज लाइफ आई गेस इट्स ओवर, टाइम हो गया। तो उसके बाद व्हेन आई वांट एट द एंड ऑफ सेमेस्टर ना, देयर वाज अ थिंग इन माय कॉलेज दैट इफ यू आर प्लेस वी विल गिव यू अ फुल मार्क्स। सो दैट वाज थिंग इन माय माइंड दैट आई हैव टू प्लेस इट एनी हाउ, बिकॉज तभी मेरे मार्क्स और परसेंटेज बढ़ सकते हैं। सो आई गॉट प्लेस इन 3 कंपनी, वन वाज पिन क्लिक, वन वाज I forgot the name here. I forgot the name, as simple as that. PinClick, SGS, and there's one more company. So I got placed in 3 companies. So college में if you go, there might be poster अभी हट गया होगा क्योंकि मैं तो पुराना हो गया हूँ। ये चीजें हैं। Now coming to next thing is that what effort I gave. I didn't join any kind of institute. मैंने शुरुआत से core personality में focus किया है। English spoken, 4 साल English spoken. कोर पर्सनैलिटी में फोकस अ लॉट, नॉट इन द कि 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया हो गया, नहीं। आई फोकस ऑन कोर पर्सनैलिटी फ्रॉम वेरी अर्ली एज। आई वाज फोकसिंग ऑन रीजनिंग, क्वांट सेक्शन पहले से, क्योंकि इंजीनियरिंग तो कॉलेज वाले करा ही देंगे, बाकी सब चीजें में तो हमें खुद से करना पड़ेगा। सो आई फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, resume making, each and everything I focused. And there is one more thing is that I gave a lot of interviews. Till now I gave 16 attempt for Army, Air Force, Navy, Indian Coast Guard. एंड जो मेरे फेलियर था, दे टॉट मी, दे, तभी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है ना। तभी तो आई गॉट लॉट ऑफ फेलियर्स एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय फेलियर। ये चीज। यस आकाश, आर यू ट्राइंग, डू यू वांट टू से समथिंग? वेल आकाश, इफ डोंट, यू कैन म्यूट। आई विल सजेस्ट यू आकाश, प्लीज इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज डू आस्क एज सून एज द सेशन एंड्स। ये चीजें हैं। सो आई गॉट प्लेस्ड। उसके बाद आई गॉट एयरलाइंस का इंटरव्यू दिया। आई वेंट टू कोलकाता टू, आई वेंट टू चेन्नई टू गिव इंटरव्यू, I got selected. I went to Hyderabad, I got selected. I got, I went to Pune, I got selected. These are the 3 factors. I joined Pune itself क्योंकि मेरे कॉलेज में कुछ दोस्तों ने मुझे भड़काया था। हुआ क्या था, इंटर्नशिप की बारी आई थी, तो एसीएस करके कोई कंपनी है जो इंटर्नशिप का प्लान देती थी। सो दे वेंट, मैं नहीं जा पाया, मेरा एयरफोर्स का इंटरव्यू था फाइटर पायलट का, सो मैं नहीं जा पाया। दे वेंट, और उन्होंने मुझे ऐसा माइंड वॉश किया कि पुणे ऐसी जगह है, वैसी जगह है। सो जो है, मैंने बोला कि अब नौकरी करूंगा तो पुणे में ही करूंगा। तो मैं पुणे गया इंटरव्यू देने के लिए। आई गॉट सिलेक्टेड। 2500 पीपल वर देयर ना, जेट के पुराने एम्प्लॉय से जेट एयरवेज डाउन हुई थी उस समय। सो 2500 पीपल वर देयर, 5 पीपल गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज वन ऑफ देम। आई डोंट नो, आई गेव माय बेस्ट, एज सिंपल एज दैट। बेस्ट शॉट, बेस्ट सीवी, ईच एंड एवरीथिंग आई गेव, एवरीथिंग वाज प्रिपेयर्ड अर्लियर, क्योंकि मैं पहले ही 2 बार सेलेक्ट हो चुका था, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूं करके। चुपचाप गया, बोला कि सर आई एम न्यू कैंडिडेट। हाँ, एक चीज और, लोगों के मन में ये है कि इंटरव्यू में सच सच बोलना है। लिटरली इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट कि इंटरव्यू में हर एक चीज सच नहीं बोलना होता। कभी सेलेक्ट नहीं होगे हर एक चीज सच बोलोगे। रिस्पॉन्ड एज पर द इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्ड एज पर द इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट। डिफेंस की इंटरव्यू तो डिफेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर दो। कॉलेज का इंटरव्यू तो कॉलेज, बैंकिंग का इंटरव्यू तो बैंकिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स दो। एयरलाइंस का तो एयरलाइंस के हिसाब से रिस्पॉन्स दो। सो इट मैटर्स टू इंटरव्यू। ये चीजें। नाउ कमिंग टू द college life हो गया। Now coming to placement, I got placed, I gave various interviews and I cleared it. Now coming to the about aviation, right? अब ये जो है थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, then we will come to how to join aviation and all. That will helpful for you all because as simple as that, we need jobs. Job is a very important role. And then उसके बाद how I come to YouTube and all. तो बात करते हैं, एविएशन ज्वाइन कर लिया, पुणे बेस आई ज्वाइन। एक चीज और, लिटरली दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस।
आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आई एम नॉट दैट मच समथिंग लाइक दैट, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। हुआ क्या, एयरलाइंस में सेलेक्ट हो गया, खुशी भी थी, लेकिन अब कॉलेज से पास आउट हो गया तो किसी ही बताते, किसी को नहीं बता पाए, पोस्ट वोस्ट भी किया तो फिर कॉलेज के कुछ दोस्तों ने देखा, ये चीज है। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन फॉर पुणे बेस, पुणे बेस में सेलेक्ट, उन्होंने फ्लाइट की टिकट दी। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर माई लाइफ, बिकॉज मेरा मन था तो था फ्लाइट में ट्रैवल करने का, लेकिन पैसे उतने नहीं थे मेरे पास। कितने रहेंगे कॉलेज में जो रहते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास कितने ही पैसे रहते हैं, मेरे पास भी, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। 100 रुपए, 200 रुपए। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी था कि यार अगर मैं नौकरी के लिए सिलेक्ट होता हूँ तो मुझे फ्लाइट की टिकट मिलेगी, जिससे मैं दुनिया घूम सकता हूँ एटलीस्ट। अपने पैसे पे तो मैं जाऊंगा, और मैं अपने परिवार का पहला लड़का था जो फ्लाइट में ट्रैवल करता था, ट्रैवल किया है, अपने परिवार का पहला लड़का हूँ, ये चीजें हैं। तो बड़ा मन में मोटिवेशन था कि यार करेंगे, इंटरव्यू निकाल लिया, फ्लाइट की टिकट आ गई पहली बार। पहले मैं एयरपोर्ट बाहर से देख के आता था, ओहो क्या चमक रहा, लाइट जल रही है। देन फर्स्ट टाइम आई ज्वाइन, आई वेंट इनसाइड, और पहली बार मैंने किसी से जो है इंग्लिश में बात करना जरूरी नहीं समझता था मैं, इंग्लिश में जो है मैं इंटरव्यू में बात करता हूँ, बाकी जगह हिंदी। तो मैंने पहली बार जो है थोड़ी इंग्लिश में बात की, हेलो मैम, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड, ऐसा वैसा थोड़ा बोला, और जो है आई ज्वाइन, आई फ्लाइट की टिकट पकड़ी, और जब फ्लाइट टेक ऑफ किया ना यार, ऐसा लगा कि शंकराचार्य को पीछे छोड़ के आ गया हूँ, सारे दोस्त जो मेरी बड़ी बड़ी बातें करते थे वो पीछे छूट गए बेचारे। मतलब ऐसा ऐसा फील हो रहा था मुझे, खिड़की को देख रहा था और हंसते हुए मुस्कान, छोटी सी मुस्कान के साथ मैं बढ़ चला दिल्ली ट्रेनिंग के लिए। तब मुझे ऐसा लगा कि यार बाकी लोग तो सब बोलते रह गए, एंड आई गेस हाँ वो बोलते रह गए, हाँ कुछ को छोड़ के, बट यस मोस्ट ऑफ द पीपल वो आज ही बोलते ही रह गए और आज ही बोलते हैं, ये चीजें हैं। सो बड़ी अच्छी मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे मेहनती आदमी मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा था कि यार हमने फतह पा ली दुनिया में। अलग ही फीलिंग थी, भले तनख्वाह कम थी लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि तनख्वाह के सामने कुछ लग ही नहीं रहा था मुझे। आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि यार क्या ही हो गया यार, मजा ही आ गया, ये चीजें हैं। तो फिर फ्लाइट लैंड किया, और पहली बार कोई आदमी मुझे कैब में लेने आया, मुझे लगा यार क्या बात है, कैब में लेने आया, कैब में मैं बैग भी मैंने नहीं रखा, उसी ने रखा बैग को, ये चीजें हैं। उसके बाद मैंने, हाँ पहली बार मैंने किसी को टिप भी दी, ये लो भैया रखो, 100 रुपए टिप, रहीसी, ये चीज, मतलब मजा आ रहा था, सेलेक्ट हो गया था तो अलग ही लेवल पे चढ़ा था। तो वो पैसे मैंने वहां से बचाए थे, स्कॉलरशिप के पैसे से बचा के रखे थे कि भाई ट्रेनिंग में जाऊंगा तो खर्चा करूंगा, तो थोड़ा बाकी लोग तो खर्चा करेंगे तो हमें भी कुछ खर्चा करना है करके। सो आई ज्वाइन, आई वेंट, आई डिड ट्रेनिंग अलॉट, मेहनत की, 100 में 100 मार्क्स आए थे वहां पे भी। एक एफसेक करके एग्जाम होता है एविएशन सिक्योरिटी का। सो आई वाज दैट मच सीरियस कि यार एक बार हो गया, पास आउट हो गया, नौकरी तो एक वन थिंग आई विल सजेस्ट इज दैट, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वही करो, कॉलेज लगती है नौकरी ज्वाइन कर लो, सरकारी एग्जाम की तैयारी करना है। सो आई विल सजेस्ट कि नौकरी करते करते उसके साथ साथ एग्जाम की तैयारी करो, नौकरी करते करते साथ साथ करो। किसी को, मेरा ये ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन नौकरी करते करते एग्जाम की तैयारी करो, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम नहीं निकला, कुछ हो गया आखिरी में जो मेरे साथ हुआ, सो योर जॉब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू विल बिकम असिस्टेंट मैनेजर एटलीस्ट इफ यू वर्क हार्ड, ये चीजें हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कल नौकरी ज्वाइन की, आई गेस दे आर नॉट हियर, मैंने पूरा देख लिया कौन किसने किसने ज्वाइन किया। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, ही ऑल्सो ज्वाइंड अ जॉब, खुशी है उस चीज की, 2 साल 3 साल बाद के, लेकिन किया तो सही जॉब, ये चीजें हैं। सो आई विल सजेस्ट, इट्स माई ओपिनियन दैट एज द ग्रेजुएशन एंड्स, डू स्टार्ट वर्किंग, कम तनख्वाह दे कोई इश्यूज नहीं, डू ज्वाइन, वर्क फॉर इट। पहली बार में कौन 2 लाख रुपए तनख्वाह देता है, कोई नहीं देगा, दे विल गिव 20,000। मेरी कंपनी होगी तो मैं और कम करके तनख्वाह दूंगा, मुझे फायदा मिलेगा ना, कम करके तनख्वाह दूंगा। मेरी एयरलाइंस होती तो मैं तो 10,000 रुपए देता, बाकी तो 20,000 रुपए देते हैं, और ज्यादा होता तो लोगों को इंटर्नशिप के दौर पे काम करवाता, ये चीजें हैं। सो दिस आर द थिंग्स। सो इफ दे पे यू लेस, डू ज्वाइन, नो इश्यूज, वर्क एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो चीजें मेरे साथ हुई है, तो आई एम प्रेटी मच क्लियर अबाउट इट। सो प्लीज डू ज्वाइन जॉब, डोंट वेस्ट कि ये होगा, हम ऐसा करेंगे, हम नौकरी तो ज्वाइन करेंगे तो इतने की करेंगे, उससे कम की मैं करूंगा नहीं नौकरी ज्वाइन, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा तो ये है, मेरा ये ईगो है, करूंगा तो यही नौकरी करूंगा। आई गेस ये बचपना है यार, प्लीज डू ज्वाइन जॉब, जो मिले, छोटी नौकरी मिले कर लो, मैंने तो कर लिया है, एंड दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल, जो मुझे मिला मैंने कर लिया। नौकरी वो करो जो कर सको, ऐसा, इट्स माई रिक्वेस्ट। और एक चीज और, लोग एग्जाम को टारगेट मारते हैं, ये वो करूंगा, एटलीस्ट इट्स माई रिक्वेस्ट कि ऐसा एग्जाम टारगेट मारो जो तुमसे निकल सके, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा वो काम वहां पे। नहीं तो फिर क्या है ना, एग्जाम की तैयारी करते करते 23 24 25 26 27, डिपेंडेंट ऑन मदर एंड फादर, आई गेस माई फादर इज ऑल्सो वॉचिंग इट,
तो ये चीजें हैं। सो डू ज्वाइन जॉब एज सिंपल एज द ग्रेजुएशन एंड्स। 2 साल में एटलीस्ट प्रमोशन तो हो जाएगा, ऐसे कुछ बन जाओगे, कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी यार। सो प्लीज डू ज्वाइन जॉब, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल। एंड जॉब की तैयारी जो है फर्स्ट ईयर से चालू करो। कोई जरूरत की नहीं है कि मैं आखिरी ईयर में आके तैयारी करूंगा। जाहिर सी बात है, जो पहले ईयर में रहेगा वो हमेशा आगे रहेगा। मैं पहले ईयर से था तैयारी, तो मैं आगे था बाकी लोगों से। एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करो, साइड बाय साइड पैरेलली मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा पढ़ लिया उधर कम हो गया, नहीं। कॉलेज में है, एटलीस्ट टारगेट रखो कितना लाना है, इतना मैं लाके रहूंगा। 70% का मेरा टारगेट था। 71.89 या 71.82 की मेरी डिग्री की बनी है, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज से, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। उतना मांगा था उतना मिल गया, नौकरी चाहिए थी नौकरी मिल गई, ये चीजें हैं। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट द माय कॉलेज लाइफ, देन वाज अबाउट प्लेसमेंट एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स। नाउ कमिंग टू अबाउट एविएशन। एक चीज, नाउ कमिंग टू आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। एविएशन की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट। आप सब ग्रेजुएटेड हैं, सम और माय सीनियर्स, सम ऑफ माय फैकल्टी, एक्सेप्ट देम, उनको छोड़ के, माय फादर, उनको छोड़ के, सम ऑल पीपल आर ग्रेजुएट। सो प्लीज, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एयरलाइंस क्या करती है, वैकेंसीज निकालती है। एयरलाइंस वैकेंसी निकालती है और उसके लिए चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन। एक चीज और, उसमें अभी तक ज्यादा इंजीनियरिंग के लोग नहीं आए हैं उसमें। मैं मेरे बेस में सिर्फ 2 ही लड़के थे इंजीनियर, बाकी सब नॉन टेक थे। सो व्हाट यार, दे आर पेइंग गुड, है ना। किसको मैकेनिकल ज्वाइन करना, तो मैकेनिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करो, किसी को जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना करो। मैंने मैकेनिकल इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो तनख्वाह बड़ी कम दे रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं भी आप ही की तरह सोचता था, नया नया था तो मैंने सोचा यार ये तो मुझे 18 घंटे काम करा के या 14 घंटे काम करा के मुझे मुझे 8,000 रुपये दे रहा है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, एयरलाइंस अच्छी चीज है, और मेरा उसमें हो भी गया था, मुझे सब समझ में आ गया था कैसे कैसे इंटरव्यू निकालना है करके। सो मुझे एयरलाइंस, मुझे दो, मेरे सामने दो कंपनी, दो ऑप्शन थे। एक तो कोई प्लांट ज्वाइन कर लो, दूसरा था कि एयरलाइंस ज्वाइन कर लेते हैं। तो एयरलाइंस अच्छी लगी मुझे। 10 घंटे काम करना था और 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती थी और फ्लाइट व्लाइट का ट्रैवल अपने हिसाब से कितना करना है वो करो था। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कि 10 घंटे की शिफ्ट है और 20,000 रुपये तनख्वाह है शुरुआत में ही। कपड़े वपड़े भी कंपनी देती थी और 15 दिन की ट्रेनिंग देती थी और फ्लाइट की सुख सुविधाएं वो अलग मिलती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये चीज। तो मेरे बेस में अभी 2 ही इंजीनियरिंग थे, बाकी कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं था। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज, ये भी एक करियर ऑप्शन है, आप इसमें करियर ऑप्शन बना सकते हैं। ऐसा कुछ खराब चीज नहीं। लोगों के मन में एयरलाइंस को लेकर बड़ी खराब इमेज है, लोगों से बात करता हूँ समझ में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉलीवुड मूवीज वगैरह मत देखा करो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एयरलाइंस से कुछ अलग ही दिखाया गया है उसमें। प्लीज डू वॉच द रियल लाइफ, रियलिस्टिक थिंग देखो, रियलिस्टिक चीजें देखो। एयरलाइंस इज अ गुड करियर ऑप्शन, दे जस्ट नीड ग्रेजुएट। तुम्हारे अगर 36% आए तो भी एयरलाइंस को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो काम कर सके, ना कि ऐसे आदमी चाहिए जो बात ज्यादा कर सके। नहीं, दे डोंट। एक चीज और, लोगों को मन में मिथ है कि लुक्स मैटर करते हैं कि नहीं इंटरव्यू में। ये मैटर करता है कि, आगे बताता हूँ इंटरव्यू का, एयरलाइंस में ये मैटर करता, नथिंग लाइक दैट। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो काम कर सके। मेरी कंपनी होगी, अगर एक आदमी जिसके लुक्स ज्यादा अच्छे हैं तो मैं उसको, और काम कम करता है तो आई विल नॉट हायर, एज सिंपल एज दैट। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो अच्छे से काम कर सके, जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल आदमी हो, जो मेहनती हो। मेरी कंपनी होगी तो मैं ऐसा करूंगा। एयरलाइंस भी वही करती है, क्योंकि उन्हें चाहिए मेहनती लोग, ना कि जिसके लुक्स अच्छे हैं। लुक्स का क्या करेंगे, कचड़ा कचड़ा है लुक्स, लुक्स नथिंग, इट डजंट मैटर लुक्स, ओनली मैटर इज हाउ यू वर्क। ये चीजें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, एंड लुक्स डजंट मैटर। ओनली थिंग इज दैट योर कॉन्फिडेंस। आपको तीन चार चीजों पे काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एंड एक चीज और, वो चीज जो है मैं अपने क्रैश कोर्स में पढ़ाता हूँ। मंथली बेसिस में मैं 2 क्रैश कोर्स रन करता हूँ, एक तो 1 तारीख को और 15 तारीख को। एंड 2 चीजें हैं, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, ये चीज तो आपके पास है ही। जो एक चीज बच गई वो जो है मैं क्रैश कोर्स में बताता हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बस पास, ये चीजें हैं। तो आप जो है अपना, उसमें क्या होता है, एयरलाइंस वैकेंसी निकालती है। सो एयरलाइंस वैकेंसी निकालती है तो आप जो है उसमें अप्लाई करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक चीज और है, छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू नहीं होता, बहुत कम, एक बार हुआ था हाँ, रायपुर, यहाँ भी मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन जानबूझ के पुणे में काम करने गया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया था। अभिषेक सिंह एंड अभय उपाध्याय, आशीष तिवारी, दे सेड कि पुणे ऐसी जगह है, उन्होंने ऐसी अलग ही कुछ बना दिया मेरे माइंड में इमेज। तो मैंने कहा अब तो नौकरी वहीं करूंगा करके। रायपुर में सेलेक्ट होने के बाद रायपुर में मैंने नौकरी नहीं की। विस्तारा और इंडिको 2 जगह रायपुर में सेलेक्ट हुआ था। तो 4 कंपनी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था, एक ही कंपनी थी लेकिन अलग अलग लोकेशंस थे। ये चीजें हैं, तो मैं इस जगह सेलेक्ट हो चुका था और मेरे पास आज भी कॉल अप लेटर रखे हुए हैं। और जब भी मैं सेलेक्ट होता था उसके बाद में उनका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता था, बस कॉल अप लेटर हाथ में आ गया, दैट्स इट। ये चीजें हैं। तो विस्तारा में सेलेक्ट, विस्तारा मैंने जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया,
तो तनख्वाह ज्यादा ही कम दे रहे थे वो लोग, 13,000 रुपये मुझे दे रहे थे। और जो है 3 लेटर के 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि यार इंटरव्यू देने आओ, सो आई डिडंट ज्वाइन। सॉरी, दे स्टार्ट की जॉब लोकेशन में है, ये आ जाओ, आई डिडंट वेंट देयर क्योंकि आई वाज हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है, अगर समवन इज देयर, कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, अंकुश इज देयर, अनुभव इज देयर, सो तनख्वाह अगर 20,000 देंगे तो ज्यादा ज्वाइन वही ज्वाइन करोगे ना। 17,000 12,000 में कौन ज्वाइन करेगा? काम उतना ही करना है, जाहिर सी बात है ज्यादा तनख्वाह में ही ज्वाइन करेंगे कोई ना कोई। हर हर आदमी वही करता है, नॉर्मल है ये चीज। भले इंटरव्यू में बोलते हैं हम लोग, झूठ बोलते हैं कि नहीं 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 सर, दिस इज अ गुड कंपनी, ये वो, नथिंग लाइक दैट। पीपल यूज्ड टू थिंक ज्यादा पैसा है, डू गो स्विच, एज सिंपल एज दैट। ये चीजें हैं। सो आई स्टार्टेड working at Indigo base, and I learned a lot of things from base, Indigo Pune base. I'm very much thankful to that airlines. I'm not promoting that airlines, but I learned a lot of things from them. I did a lot of mistake, गाली खाया, सब कुछ खाया, लेकिन I learned a lot of from thing, learned a lot of things from them. And as simple as that, आज मैं जो भी हूँ, it just because of my airlines, because they have taught me each and everything. I guess Kumar is also there. He is my ex-colleague of the airlines. So I worked there, and as simple as that, I worked a lot. And after that, after few days, I thought कि I'm best. So side by side मैंने एग्जाम भी देता था, और I cleared the exam. And जिस दिन एग्जाम क्लियर हुआ, I told my manager that sir, these are the things, and I think I should move on with some other career option. My manager told me कि you can join with the 2 years. 2 years you have, you can join, and you can join it again. So I thought कि लेट्स सी, एक बार चांस लेके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो आई लेफ्ट दैट जॉब, एंड एज सिंपल एज दैट, वहीं पे पेंडेमिक आ जाता है, और मैंने वहां पे जॉब छोड़ दी ना। बात करते हैं एविएशन में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीवी भेजना है एयरलाइंस के पोर्टल में। अगर उन्हें आपका सीवी पसंद आएगा तो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट नहीं होता, इंटरव्यू दूसरे दूसरे स्टेट्स में कंडक्ट होता है, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये झोली में आके नौकरी नहीं गिरेगी, पहली बात तो ये थोड़ा बदलो इस रवैये को थोड़ा सा। नहीं नहीं, नौकरी हाथ में आके नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो प्लीज डू गिव एफर्ट। मैं खुद पुणे गया था इंटरव्यू देने के लिए, आई वेंट देयर एंड आई गिव पुणे का इंटरव्यू। ये चीजें हैं, आई गॉट सेलेक्टेड। एंड एक दो बार मुझे आना जाना भी करा, मेडिकल टेस्ट ये वो के चक्कर में। दिस वाज द थिंग। सो ये चीजें हो गई। उसके बाद व्हेन आई वाज वर्किंग, एंड मुझे मैंने मैंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए, 16 इंटरव्यू दिए एसएसबी के। तो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मैंने सोचा कि एविएशन के साथ कुछ मिक्स किया जाए। और एक चीज और, लोगों को एविएशन के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आज भी नहीं है। देयर वेरी फ्रॉड थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट। आई थॉट को लेट्स चेंज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई स्टार्टेड गाइडिंग पीपल इन फ्री। आई मेड अ यूट्यूब वीडियो, है ना। अब बात करते हैं यूट्यूब वीडियो की। मैं एग्जाम की तैयारी तब भी कर रहा था छोड़ने के बाद, मैं आज भी करता हूँ। मेरे कुछ कुछ टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 भी बचे हुए हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स के। अभी अभी फिर एक इंटरव्यू के लिए जाना है। सो टुडे आल्सो आई यूज्ड टू गो एंड गिव द इंटरव्यू। एंड ये चीजें हैं, क्योंकि द थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ फॉर 16 अटेम्प्ट्स, आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड, नो इश्यूज, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम। जो चीज मैंने वहां से सीखी एसएसबी से, वो चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। सो एक चीज और बताता हूँ, उसके बाद मैंने यूट्यूब में आ गया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, नो वन इज पर्सन टू गाइड, सो आई गाइड पीपल टू 2 मंथ्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गाइड किया। तो इमेज बनानी थी मार्केट में। So I coached them for 2 months free of cost. And then I thought कि अब यार 2 महीने तो हो गए हैं. So I started charging money कि these are the free things which I have guided you. Now if you want to see the main content, I will charge a certain amount of money. I said this thing. So people started joining that paid things. ये चीजें हैं. So as simple as that, I did one more thing. I coached जो मैंने शुरुआत के 2 महीने लोगों को कोच किया, सो उसमें लोग सेलेक्ट होना चालू हो गए थे उस समय लोग जो है सेलेक्ट होना चालू हो गए थे। तो लोग सेलेक्ट होना चालू हो गए, एंड आई वाज वेरी मच बहुत खुशी का मेरे लिए वो था। तो मैंने उनको बोला कि यार एक वीडियो बनाओ दैट योर्स गॉट सिलेक्टेड, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस कि वी हैव गॉट सिलेक्टेड, एंड दे आर स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी इन विच आई वाज। ऐसा नहीं है कि दे आर वर्किंग विद इंडिगो, ऐसा थोड़ी ना कुछ है। दे आर वर्किंग विद डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस। Some are working at SpiceJet, some are working at Vistara, some are working at different places. So they started working. My YouTube channel name is Aviation Life. So if you want to join aviation, do subscribe it, because I guess उससे बेहतरीन कंटेंट कहीं नहीं है। बहुत से लोग जो एविएशन में नहीं, वो भी एविएशन की वीडियो डाल देते हैं। यूट्यूब में खाली है, क्या करें, चला लेते हैं। सो दे स्टार्टेड वर्क जो है
कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू द जेन्युइन थिंग, यू वांट टू वर्क फॉर द एयरलाइंस, डू सब्सक्राइब माय चैनल एविएशन लाइफ, फर्स्ट थिंग। तो ये चीजें हैं गाइस। So I coach people for ground staff and for cabin crew. So people start getting selected, है ना, दिल्ली बेस के लिए, भुवनेश्वर बेस के लिए। कई लोग फेल होते गए, तो उनको मैंने फिर गाइड किया कि यार डू दिस, इसकी अप्रोच ये होनी चाहिए। वो अप्रोच क्या है, वो तो मैं गाइस अपने क्रैश कोर्स में बताता हूँ। आई कैन नॉट रिवील ईच एंड एवरीथिंग इन द गूगल मीट और सम काइंड ऑफ यूट्यूब में भी आधा ही है, एंड आधा जो है वो एज सिंपल एज दैट इट इज इन माई पेड क्रैश कोर्स। ये चीजें हैं। सो स्टार्टेड वर्किंग विद यूट्यूब, लोग सेलेक्ट होते गए, धीरे धीरे सेलेक्ट होते गए, एंड जो है इस बेस के लिए सेलेक्ट हुए, देन उस बेस के लिए, उस बेस के लिए, उस बेस के लिए। तो जो है पहले मैं, मेरी कॉस्ट थी, फीस थी, मैंने 500 रुपीज रखी थी। सो पीपल जो है, मैंने आई वॉज सो पीपल जो है दे स्टार्टेड मिस यूजिंग इट। आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ मोर देन 500 रुपीज। दे वर गेटिंग जॉब। 500 रुपए देने थे उन लोगों को, और मैं उनको एक हाथ में नौकरी इस लेवल पे कोच करता था कि दे यूज्ड टू क्लियर द इंटरव्यू। सो आई थॉट कि लेट्स इंक्रीज द फीस, लेट इट मेक 2000, बिकॉज मैनी पीपल दिस, उन्होंने वीडियो नहीं बनाया। कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, उसको उन्होंने फोन करना चालू कर दिया। सो पीपल गेट चेंज, है ना, एटीट्यूड गेट चेंज आफ्टर गेटिंग जॉब, पीपल एटीट्यूड गेट चेंज। ये चीजें हैं। सो मुझे लगा कि यार दे आर गेटिंग प्रॉफिट एंड व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। मैंने उन्हें पढ़ाया, इमोशन सेंटीमेंट जुड़े थे, मेहनत जुड़ी थी रात रात की। लोगों को तो आखिरी में सिर्फ एक दिखा कि यार ये हो गया। ये चीजें हैं। तो सेंटी बहुत हार्ड वर्क के साथ यूट्यूब चैनल खोला था, बहुत सी प्रॉब्लम भी फेस हुई। ये चीजें, नीतीश काइंडली म्यूट बडी, राइट एट शार्प 11, यू कैन आस्क एनी डाउट। या सो ये चीजें हैं, एंड एनी हाउ आई मैनेज टू लीव दैट कंपनी एंड ओपन अ यूट्यूब चैनल, एंड पीपल जो है आते गए, पढ़ते गए, आते गए, पढ़ते गए, एंड इंस्टाग्राम प्रमोशन भी धीरे धीरे चालू किया मैंने। और एक चीज और, आई वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे यार। आज तक मैंने अपनी कंपनी से पीएफ का पैसा नहीं निकाला है, आज तक नहीं निकाला है। तो वो चीजें वहीं पे वहीं रह गई, और रहने दो से, वहीं में जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। सो आई वॉज हैविंग वन स्मॉल फोन। ये फोन खरीदा था मैंने शौक से, क्योंकि मेरे कॉलेज के फैकल्टी जो है महंगा फोन चलाते थे, तो मैंने सोचा कि नौकरी लगेगी तो मैं भी खरीदूंगा। सारे टीचर्स के पास आईफोन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी नौकरी लगेगी तो मैं खरीदूंगा। ये मेरा बड़ा डेडिकेशन था। सो तनख्वाह 20,000 रुपये मिलती थी, 10-10 हज़ार रुपये 3 महीने मैंने बचाए, और मैंने अपना पहला आईफोन खरीदा जिंदगी का। उसी आईफोन से मैंने पहला वीडियो बनाया और अपलोड किया मैंने। फिर उसी चीज से कोच भी करता था। फिर बैटरी बहुत दिक्कत देती थी, फिर मैंने नया फोन ले लिया जिसमें मैं प्रॉपरली सब लोगों को पढ़ाता हूँ। आई डोंट हैव एनी सेटअप, कुछ सेटअप नहीं, एक सिंपल फोन है सिर्फ, गैलेक्सी का। सो मैंने लोगों को पढ़ाना चालू किया, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती गई, बढ़ते गई। ये चीजें हैं। एंड आई स्टार्टेड विद जीरो। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, नहीं मैंने कुछ किया, घर में बैठा बैठा रहता था, पढ़ता था। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, पढ़ा देते हैं। सो आई स्टार्टेड कोचिंग एंड पीपल, उससे, उस चीज से लोगों की नौकरी लग रही थी। प्रॉफिट ये था ना, लोगों की नौकरी लग रही थी। सो नौकरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसको जॉब नहीं चाहिए, जॉब सबको चाहिए। हाँ, उसको जॉब नहीं चाहिए जो पहले से नौकरी कर रहा है, लेकिन हाँ, अगर पेमेंट ज्यादा मिलेगी तो ही कैन ऑल्सो स्विच। ये चीजें हैं। तो जॉब सबको चाहिए। सो यू कैन स्विच फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एयरलाइंस इन दिस वे। ये चीजें हैं। सो यू कैन स्विच। जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल सेक्टर में ही मैं आगे जाऊंगा, मेरी डिग्री तो वही है यार, सेंटीमेंट जुड़े हैं, नथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में जाना, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ फील्ड। सो यू कैन एक्सप्लोर इट, है ना, जहां मन किया वहां एक्सप्लोर कर दो गाइस, है ना, वहां एक्सप्लोर कर दो। सो यू कैन डू लाइक दिस। सो आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, कम सब्सक्राइबर थे शुरुआत के, जो सब्सक्राइबर मेरे मम्मी मदर एंड फादर थे। एंड थिंग्स गॉट इंक्रीज, कोई कंटेंट अच्छा था तो लोगों को पसंद आने लग गया धीरे धीरे, एंड लोगों को जो पसंद आया तो लोगों ने ज्वाइन करना चालू कर दिया धीरे धीरे। एंड आई स्टार्टेड अर्निंग अदर थिंग्स फ्रॉम इट। अब लोग पूछते हैं सैलरी कितनी है, तो सॉरी यार, आई कैन नॉट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग, सैलरी कितनी है, कितनी है, बट यस आई अर्न गुड। एंड हाँ, मेरा खर्चा निकल जाता है। ये चीजें हैं। एंड इफ यू वांट टू नो द सैलरी, इफ यू वांट टू जॉइन एयरलाइंस, डू जॉइन द रेस्पेक्टिव क्रैश कोर्स एंड आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग देयर। ये चीजें हैं। So this was all about my YouTube channel. I coach, people get selected, and I love that thing यार, people get selected, और क्या चाहिए, लोगों की नौकरी लग रही है। ये चीजें हैं। So now coming to the next thing, I opened, आपको एविएशन, आपको कॉलेज की लाइफ में बता, आपको कॉलेज लाइफ के बारे में मैंने बता दिया, आपको मैंने बता दिया कॉलेज की इंपॉर्टेंस, आपको बता दिया कि आई गॉट प्लेस्ड। नाउ आपको मैंने बता दिया अबाउट कि एविएशन ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। इफ अ गर्ल इज देयर, शी कैन ज्वाइन एज अ कैबिन क्रू, जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो।
and if there is some boy, he can join as a ground staff and he can also join as a flight attendant. तो ये चीजें हैं. So I guess YouTube channel it's running smoothly. Every day I used to come live in YouTube. तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लाइव आ सकते हैं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में. सुबह के 6 बजे डेली मैं लाइव आता हूँ एंड डेली पीपल के डाउट्स क्लियर करता हूँ फॉर द नेक्स्ट 25 मिनट्स और 30 मिनट डिपेंड ऑन मूड. आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग. टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया है कि दौड़ के आऊंगा, दौड़ के थक जाऊंगा, उसके बाद लाइव सेशन अटेंड करूंगा. सो डेली का सीन वही है. तो वो चीजें आई यूज्ड टू अटेंड लाइव सेशन एंड जिसको ज्वाइन करना रहता है अलायंस, सो आई यूज्ड टू पुल हिम इन द क्रैश कोर्स एंड आई यूज्ड टू कोच हिम इन द सेम. जैसे कि गूगल मीट चल रहा है वैसे ही लोगों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन. और उसके एक चीज ये भी, एक 3-4 फायदे हैं कि ना आपका इसमें पैसा लगा है, कोई पैसा नहीं लगा, नथिंग लाइक दैट. एक फोन है वो बस, वो भी मेरा पुराना फोन था. फोन सबके घर में है. इट डिपेंड्स ऑन यू. लोग बोलते हैं ना कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग फोन. सो दोनों चीजें हैं. मैं तो यूज करता हूँ लोगों को कोच करने के लिए. आप शायद से गेम खेलने या किसी और चीज के लिए यूज करते होंगे, क्या पता आप पढ़ने के लिए यूज करते हो. सो फोन और फोन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज हैं. आई स्टार्टेड विद 1.5 GB डेटा पैक. नाउ आई हैव अ वाईफाई. वो मैंने लगवा लिया ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले उन लोगों को. तो ये है. टिल नाउ आई हैव 42 प्लस सिलेक्शन, 42 सिलेक्शन, तभी तभी 40 प्लस लिखा है मैंने वहां पे. 42 लोग सिलेक्ट हो गए. और हाँ, जाहिर सी बात है उसमें कुछ लोगों की ट्रेनिंग पेंडिंग है. ट्रेनिंग होगी, कोविड के समय अटक गया तो वो अटक गया ना, कोई इश्यूज नहीं. लेकिन बट दे आर सिलेक्टेड एंड सम ऑफ फ्यू, सॉरी, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग, फ्यू ऑफ देम आर सिलेक्टेड. एक दो लोग हैं जो नए नए आखिरी आखिरी में सिलेक्ट हुए थे. कोविड की वजह से जो ट्रेनिंग रुक गई, so उन्होंने जो है वहां चालू कर दिया, रुक गया. हाँ, as soon as the year ends. और एक चीज और, लिटरली आई अश्योर यू दैट 42 hours get selected. Till now I have coached a lot of people. बहुत से लोग है ना, आपने देखा होगा कि I have given guidance to coach for 150 से आसपास लोगों को मैंने कोच कर दिया. ऐसा नहीं कि उनका वो वेस्ट चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वैकेंसी अभी आएगी जुलाई महीने में, तो वो लोग सिलेक्ट होंगे जिसको मैंने कोच किया है. ये चीजें हैं. तो रेस्ट पीपल विल गेट सिलेक्टेड व्हेन द थिंग्स विल गेट स्टार्टेड. रेस्ट पीपल विल गेट सिलेक्टेड व्हेन द, क्या बोलते हैं उसे, जब वैकेंसी आएगी तब. तो ये चीजें हैं. तो आई गेस थिंग्स आर ओवर. एंड हाँ, सम टिप्स फ्रॉम माय साइड. इंटरव्यू में जो है सच की पीपड़ी मत बजाओ, क्योंकि मैंने ये करके देख चुका हूँ. मैं ट्राई एरर मार के देख चुका हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बाइजूस के इंटरव्यू के लिए दिया गया था. उन्होंने मुझसे पूछा आफ्टर 5 years व्हाट यू विल डू. आई सेड आई विल जॉइन आर्म फोर्सेस. कौन सेलेक्ट करेगा यार? अगर पहले ही बता दोगे कि मैं 3 साल बाद छोड़ दूंगा नौकरी, कोई सेलेक्ट नहीं करेगा. अरे मैं ना करूं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कंपनी, मैंने किसी को रिक्रूट किया, उसने बोला कि सर मैं 2 महीने बाद छोड़ दूंगा. कौन सेलेक्ट करेगा? नहीं करेगा कोई. सो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. मैंने मिस्टेक की है वो. बायजूस में मैंने यही बोला. एक और कोई कंपनी सेल्स की, तो जीडीवीडी ये भाई प्रो था. मैं आज भी प्रो मानता हूँ अपने आप को. सो दिस आर द थिंग्स. और इंटरव्यू में थोड़ा झूठ बोलना तो जरूरी है. हर एक चीज सच बोले. जैसे मैंने सच बोला कि आई विल जॉइन आर्म फोर्सेस. ऐसे बोला तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, उनकी कंपनी है. एक चीज और गाइस, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, एवरीथिंग इज फेयर, है ना. एवरीथिंग इज फेयर. डू एवरीथिंग इज फेयर गाइस. सो इंटरव्यू में झूठ बोलना जरूरी है. तो ऐसा नहीं कि सच बोलेंगे. और एक ये चीजें हैं. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैटर्स अ लॉट. एंड डू चूज कि आई हैव टू डू दिस जॉब. आई चोजन एयरलाइंस एंड आई डिड दिस. ये चीजें हैं. सम मोर टिप्स. कॉलेज में जो बोल रहे हैं उनकी बात मानो. इफ दे से कि सेमिनार अटेंड करना है, करो. कुछ ज्यादा इतना वो नहीं. इफ दे से कि सॉफ्टवेयर सीखना है, सीखो. बिकॉज दे नो ना कि क्या करना है आगे जाके. यू डोंट नो. आप तो सिर्फ ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, एक छोटा सा माइंडसेट की हाँ डिग्री खत्म करनी है. सो कॉलेज पीपल, फैकल्टी, दे नो कि आगे जाके क्या होगा. दे आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस पर्सन. एक फर्क है ना 20 साल में और 50 साल के उम्र में. सो वही तो वो बता रहे हैं कि सो व्हाट कॉलेज पीपल से, प्लीज डू दैट. हाँ, कॉलेज में रहते हैं तो सोचते हैं कि ये कुछ नहीं जानते, ऐसे हैं वैसे हैं, ये प्लस. प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू इट. इट विल बी हेल्पफुल. इफ नॉट, देन फिर यार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब आज भी जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. पहले उन्होंने गेट की तैयारी की, फिर उन्होंने बैंकिंग, फिर उन्होंने एसएससी की तैयारी की, देन उन्होंने बैंकिंग की तैयारी की, एंड देन फिर बैंक पीओ की तैयारी की, देन बैंक क्लर्क की तैयारी की, एंड देन फिर वही बात है ना, अभी एग्जाम देने जाओगे फिर सब लोग मिलते हैं. ये चीजें हैं. सो प्लीज ऐसा मत करो. अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो शुरुआत से बैंकिंग की तैयारी करो भाई. गेट के बाद फिर एसएससी दिया, फिर एसएससी के बाद बैंकिंग दिया, देन उसके बाद कुछ और दे रहे हैं. प्लीज डू टारगेट वन एग्जाम एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑल. एज सिंपल एज दैट. मेरा एफकट निकला. मैंने आई गिव लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स. आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड बिकॉज मेरे अंदर कुछ कुछ क्वालिटी कमी थी. मुझे पता है, मेरे कुछ दोस्तों को भी पता जो आज अटेंड कर रही है चीज, उन्हें पता है कि मेरे अंदर क्वालिटी कमी थी, नहीं हुआ.
पर्सनैलिटी का टेस्ट था वो, इसलिए नहीं हुआ। माइट भी मेरी पर्सनैलिटी सूट नहीं होती इसलिए नहीं लिया उन लोगों ने। ये चीज नहीं होता तो क्या हो गया, इट्स नॉट कि नहीं हुआ तो मतलब इसका तो नहीं हुआ यार, ये है वो है, नथिंग लाइक दैट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। आई गिव अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, आई लर्न फ्रॉम दैट माय फेलियर, एज सिंपल एज दैट। और मैं तो उसे फेलियर मानूंगा ही नहीं। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। एग्जाम था, एग्जाम तो क्वालिफाई किया ना मैंने, पर्सनैलिटी का टेस्ट था। रेज द हैंड कबीर साहू, आई गेस कबीर साहू इज माय स्टूडेंट, है ना? कभी ही यूज्ड टू कम लाइव। सो गाइस रेज हैंड, नो इश्यूज, आई नो वेरी वेल कि ये तुम्हारा उसका टाइम है, शशांक सिंह परिहार हैज रेज द हैंड। सो गाइस आई नो कि ये तुम्हारे क्रैश कोर्स का टाइम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्लीज बी रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी कूल एंड एवरीथिंग विल फाइन। अरुण पांडे हैज रेज्ड द हैंड। So guys, these are the things, and these are the some tips from my side. Do what teacher says, it will be helpful for you. टीचर गलत नहीं चाहेंगे। और as soon as the college gives some effort, plus please do give some extra effort, क्योंकि कॉलेज कितना ही करेगा, राइट? आपको अपने साइड से कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस चीज पर डिपेंडेंट होकर बैठोगे कि ये ऐसा कराएगा, ये ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, देन आई गेस नथिंग विल टेक प्लेस एट द डे एंड। कॉलेज ग्रेजुएट विद 1 डिग्री, नो जॉब। और प्लीज डू वॉट एवर जॉब यू गेट, उसके बाद अच्छी नौकरी मिली तो बदल दो नौकरी, ये प्लान कर सकते हो। नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिली, बदल दिए। लेकिन इंटरव्यू में ये नहीं बोलना है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। But when you start work, please be simple and be humble to others as well as, पहले ही मत बता दो नौकरी करने के समय कि मैं छोड़ दूंगा। ये सब चीजें मैंने गलती की है, ये गलती मत करो आप लोग। तो ये चीजें, बाकी बाकी एक चीज और, अगर आपको एयरलाइंस ज्वाइन करना है, अगर आपको कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू, इफ यू वांट टू क्लियर द इंटरव्यू फॉर कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एंड दिस वन मोर, मैंने टोटल 17 लड़कियों को कोच किया था। 17 लड़कियों में से 5 लड़कियां तो अप्लाई नहीं कर पाई, बट फ्यू ऑफ देम अप्लाइड, एंड 2-3 गर्ल्स वर देयर, एंड आउट ऑफ गर्ल्स 2 गॉट सेलेक्टेड फॉर द इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू। अब बोलोगे इंडिगो ही क्यों? क्योंकि उसी वही तो वैकेंसी निकालती है, बाकी तो निकालती तक नहीं है। जो वैकेंसी निकालेगी वही उसी में ज्वाइन करेंगे ना। एक चीज और, तो द 2 गर्ल्स गॉट सेलेक्टेड, वहां से जो है लड़कियों ने भी मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चालू कर दिया, बिकॉज दे वर गॉट सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो चुके थे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि what I know, I guess that's the thing which I know। देखिए अब तो मैं चीजें जो है, now the things have been changed, now I'm thinking to have a लोगो का जो वो करा लूं, कॉपीराइट ना हो, ये सब चीजें I'm working on it। Let's see। एक चीज और, I just used to give 2 hours just for this thing, not more than that, उससे ज्यादा नहीं देता मैं, and that thing is enough for me, I guess। बाकी अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपनी चीजें, that's a different thing। I just used to give 2 hours for this thing, and I coach people to join airlines, and I coach people to clear the interview in one single attempt। If you want to do that, do join the crash course, which started one every हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को चालू होता है, and yeah, that thing is paid, as simple as that। Because फ्री का होगा तो कैसे मैं 4,000 लोगों को पढ़ाऊंगा? आज तो चलो 78 लोग आए हैं, that's it। ज्यादा लोगों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है फ्री में, एंड व्हेन व्हेन जब किसी को फ्री में चीजें मिलती है तो वो उस चीज की कदर नहीं करते। ये चीजें मैंने सीखी है, मैंने देखा है, तजुर्बा किया है मेरी जिंदगी से। सो वही चीजें मैं फ्री में पढ़ाता तो लोग ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन जब चीजें पेड हो गई तो लोगों ने ज्वाइन किया। तो अभी तो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब फीस 500 रुपए थी तो ज्वाइन नहीं किया। आई गेस गौरव इज देयर, ही ज्वाइन जब फीस 2,000 रुपए हो गई। अब हाँ, फीस उतनी ही रहेगी, कोई बढ़ेगी नहीं, तो उतनी ही फीस रखेगी। और मेरा बचपन से मन था कि शुरुआत, नॉट बचपन से, शुरुआत से मन था कि क्वालिटी एजुकेशन देना है कम अमाउंट में। सो आई जस्ट started coaching people, and that's it। this is all about this is all about me, my interview experience। I utilize that experience into that thing। और select लोग select भी हुए, और हाँ, they are working। if some engineering graduate want to work for airlines, they can work for airlines। just आपको CV भेजनी है, and if अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, so do join the crash course। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, आप फेल हो गए इंटरव्यू में, do join the crash course। I run a YouTube channel named Aviation Life। do subscribe if you want to join aviation, otherwise please don't, because it will have no use। so ये चीजें guys, now I guess its time is 10:52। now we have 10 minutes doubt clearing session, and there's one more thing I request, that please do cooperate, do speak one by one। अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज मत बोलो, खत्म होने के बाद आप बोलो। so we have 10 to 15 minutes, you can ask your doubts one by one, I will rectify each and everything। और हाँ, कुछ ऐसी चीजें हुई जो मुझे लगा कि यार
ये चीजें मैं नहीं बता सकता बिकॉज द थिंग्स आर रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे. सो आई विल टेल हिम दैट प्लीज डू जॉइन द क्रैश कोर्स. दिस विल बी रिस्पॉन्स एंड दिस विल बी रिस्पॉन्स बिकॉज द थिंग्स आर द गोइंग ऑन राइट. सो अगर मुझे कुछ चीज ऐसी लगती है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए तो आई विल से टू जॉइन द क्रैश कोर्स. लेकिन हाँ, उस जरूरी नहीं कि वही चीज पूछना उधेड़ उधेड़ के. प्लीज यू कैन आस्क एनी अदर थिंग. आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग विथ एनीवन. यू कैन आस्क When is the next vacancy likely to come? शशांक. जुलाई मंथ, बड़ी जुलाई मंथ. बिकॉज यू ऑल्सो नो पेंडिंग में क्या चल रहा है यार शशांक. जुलाई मंथ बड़ी है ना. तो शशांक हैज डन द क्रैश कोर्स बट ही हैजंट जॉइंड. सो शशांक प्लीज कीप पेशेंस है ना. यू विल गेट सिलेक्टेड Thank you, एज sir. है ना बड़ी. And I want to say to everyone that he teaches really well, and पैसा वसूल crash course है, पैसा वसूल crash course. Thank you, sir. वेलकम है ना शशांक. सो गाइज आई विल गिव. यार मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए काम नहीं करता. मैं अपने अपने एविएशन लाइफ चैनल के लिए काम करता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के लिए दूसरे. और एक चीज और, आई गेट ऑफर फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन. नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगा. एंड दे आर पेइंग गुड. गुड मतलब वेरी गुड है. दे आर पेइंग गुड. बट आई डिडंट जॉइन बिकॉज आई वर्क फॉर माई सेल्फ. आई डोंट वांट टू वर्क फॉर अदर्स. ही विल से कि आशीष डू दिस, आशीष डू दैट, आशीष डू दिस. आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, है ना. So I want to work for myself. I want to promote my brand name, that is Aviation Life, not some others brand name. कि I work for that and they will get the credit. पोस्टर जो लड़का सेलेक्ट होगा, जो लड़की सेलेक्ट होगी, मेहनत मेरी होगी, ब्रांड नेम उसका होगा. So नहीं. So I rejected their chances each and everything. And what I did is that I started coaching myself. मेरी बहुत से लोग, बहुत से, जैसे कि अब क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म है. So कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म में आगे पढ़ाओ आप. And you are charging 2,000 rupees, we will charge more, and that will be our commission. As simple as that. I said no, nothing like that. जैसे ये चीजें नहीं होगी. जो चीजें चल रही वैसी चलेगी. So this is what I did. I didn't went to any other institute because as simple as that. अगर वो वहां जाएंगे तो ब्रांड नेम उनका होगा और स्टूडेंट्स वहां के सेलेक्ट होंगे. So I don't know कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, but if someone gave me an opportunity to conduct a webinar again at some other institute, like Shankara Bhilai, Rungta, any other college, please do approach because I conduct a webinar. This was the first webinar, and in future I will conduct another. My next target is Shankara Bhilai. I have talked to the placement cell of Shankara Bhilai, and let's see what they. Hello, thank you, Naveen sir. Thank you, Nayan. How are you, Ashish? It was nice to hear you and see you that you have started your own work. One thing is there, you have changed a lot, but it's the life which teaches you many things, but you are as focused as you were when you were in the department. It's good to see that you were very dedicated to a particular aim in your life. During your undergraduate journey in the department, I can say to all that he was among the top students who were very focused, and he knew what he wanted in his life. And he was never ever seen in any of the activity which was not building or contributing to his personality. It's a true fact that he was not very intellectual. He was not that type of technocrat personality, nahi tha wo. But he was always there to upgrade his personality. He was very particular about his dress, how he talked to the teachers, and he followed many teachers. Of course, I was not of that profile and age group which was to be followed by youngsters, but he was very close and always talking to Pratik, as he said, Mr. Pratik. Even Akash Soni was very close to you. Am I right? Yes, so sir. Yes, sir. He has learned a lot, keeping all the bad things aside. That's his greatness. Teachers, क्योंकि क्या है, हम लोग बुरा भी बोलते हैं. It's our duty because today mother fathers have stopped saying bad and right things. They have stopped scolding क्योंकि वो डरते हैं. But teacher जो है, he is the last person in the society. I tell you, Ashish, now you are also a teacher. You will feel that this responsibility of the society, that you are the last person who will say truth about any of the candidate, irrespective of the fear कि ये कर लेगा, ये मेरे बारे में ये सोचेगा, या मेरे को छोड़ के चला जाएगा, मेरा फीस नहीं देगा. So you are doing a very good job, and during your interview only I have seen your videos. The last one I think is live from the Shadi ke Ghar se.
And so Yes, sir. I was coaching in the just with two chairs itself. शादी के घर से सर लाइव था मैं. एक बात बताऊं आशीष, I also started my tuition with 2 students, and there was a time when I used to have say no, I cannot have. बोले सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे, हम खिड़की के बाहर पढ़ लेंगे. So that is the greatness. At the end of the day, when you sleep, you close your eyes. It's not the money you have in your pocket. It is the satisfaction as a teacher कि आपके पढ़ाई हुई की कद्र है. आदमी आपका ज्ञान लेना चाहता है. And let us say माँ शारदा keep blessings on us as a teacher कि हम लोग का जो भी बात है वो लोगों को समझ आए और उसका वैल्यू हो. So I am very happy that you have started your own work. Secondly, you are in a teaching, and I hope that if we talk after this, we can come out with some course module for say 5 days, 7 days, a long workshop. Of course, it will be a paid one. People will give certain fees to join, and certainly we can have one 5 day or a 7 day. You can say a course. We say it as a short-term training program. It's not an eye-opener like this. Definitely, it will be a long interaction. So I will talk to Manish Sahu sir and Nakash Soni sir and all the coordinators of this program. So घर वापसी करिए आशीष जी, जो आपने सीखा और जो आपने डिपार्टमेंट में पढ़ाई के दौरान अपने पर संयम रखा, डिसिप्लिन रखा, that is very important. I tell you, there are many students who are you know, एक होता है कुल्हाड़ी पे टांग मारना. आज के परिप्रेक्ष्य में ना एक नई कहावत है, कुल्हाड़ी उठा के अपनी टांग पे मारना. So since the lockdown, many of the students, they are very casual. अबे यार पेपर तो घर पर ही आएगा, पूछताछ के लिख देंगे, and we will be getting very good marks. So वो जो एक मेहनत करने का जज्बा है ना आशीष, जो स्टूडेंट में होना चाहिए, जैसे तुम बार बार बोल रहे थे मैं मेहनत करता रहा, सीखता रहा. Today, the student is finding a shortcut rather than a shortcut to a shortcut, which will pay in a very adverse effect in their midlife after 30. अभी तो दौड़ जाएंगे, मेहनत करके compensate कर लेंगे, but knowledge will never ever be gained after you cross 35. It will be only experience. I hope I am making a sense when I say कि knowledge और experience अलग होता है. After 35 you gain experience, up to 35 you gain knowledge. तो ये जो ऑनलाइन के दौरान कई स्टूडेंट आते ही नहीं हैं, many have taken a संन्यास from the classes, तो ये सब इनको हार्म होगा. बट स्टिल I wish you all the very best, and I hope that your father is there. मैं उनको नमस्कार करता हूँ, और ये सबसे प्राउड फीलिंग होता है कि उनका बच्चा जो है उनसे आगे निकले, इतनी बड़ी सफलता पाए. तो उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, that is the most important thing. And dear audience, listen to the journey with the thought that we are going to implement some of the points of the speaker in our life, as he has given many points. और बहुत practical points है आशीष. I tell you, I am very happy. Not in all the this programs we have got this cycle of calling alumni every Sunday. मैं generally, to be very honest, संडे रहता है, थोड़े बहुत काम रहते हैं, मैं 100% नहीं बैठता. बट टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई हैव जॉइंड फॉर 100%. आई हैव सीन योर यूट्यूब्स, सो यू आर डूइंग गुड, एंड लेट्स शेक हैंड्स टू हैव सम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स विद कोलैबोरेशन विद Shankaracharya. And you have got my number. My number is same. You give me a call. I have already saved it, sir. Even though, sir, I have already made a module that कि students को क्या पढ़ाना है. हाँ, आना है. And you give me a call. We will talk about some other also professional opportunities. I have got certain contacts. I can make you in touch with them, and the rest depends on you. So I won't be taking much time. Otherwise, I will become the speaker of this session. So all the Definitely, sir, and thank you for the support, sir, which Shankaracharya Institute have shown. I was never expecting that after college someone will remember me, something like that. But I'm very much thankful to the my HOD sir, Naveen sir. I've never thought that in future I might be talking to him like this. We are always there, आशीष. होता क्या है, कॉलेज छूटने के बाद ना स्टूडेंट हमसे दूरियां बना लेता है, चाहे उसको कुछ हमारी बात बुरी लग गई हो या वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है. वी आर ऑलवेज देयर, एंड हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे वापस जुड़ें, क्योंकि आप
सोसाइटी में, इंडस्ट्री में जाके कुछ नया सीख के वापस हमको सिखाएंगे ना, सो दैट वी विल बी एबल टू ट्रेन दी योर जूनियर्स। हम तो देखो इंस्टीट्यूट छोड़ के जा नहीं सकते, दुनिया आप लोग घूम रहे हैं, यू आर ऑल अवर सीड्स, you will take the air and land from the different portions of the world and you will come back and tell us कि सर वहां का हवा पानी ऐसे है, जैसे आज आपने एविएशन लाइफ का हवा पानी सबको बताया। दिस वाज ए न्यू थिंग फॉर मी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैकेनिकल इंजीनियर जाएगा। अदरवाइज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है और वो एयर क्रू मेंबर होते हैं, सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और एक पायलट होता है। मेरे लिए एविएशन यही था बस। सो टुडे यू हैव गिवन एन आई ओपनर and I hope all the boys and girls will have that discipline in life. You go to aviation, you go to army, navy, wherever, the discipline is very important. And I once again very firmly say that out of all the 24 years of my journey, Ashish was the most disciplined student I have seen. वो मेरे से बात भी करता था तो ऐसे करता था जैसे मिलिट्री का जो एक आदमी है ना, वो अपने कर्नल से बात करता है। Sometimes I used to wonder कि why is always in so फंडा, ये इसको आप लोग बोलते हैं ना, हमेशा फंडा में रहता है यार, एकदम एटीट्यूड में, कैरेक्टर में रहता है। बट आई गेट दिस थिंग नाउ कि उसका वो जो प्रैक्टिस और जो उसकी मेहनत थी, नाउ ही इज वेयर ही इज। आई एम वेरी हैप्पी आशीष, सो ऑल द वेरी बेस्ट, ओवर टू यू अगेन। Thank you, sir. Thank you for the opportunity. And sir, I want to tell you something that I have already made a proper setup. Ki if I made a workshop, I will coach this thing. If I conduct a webinar, I will tell them this kind of things. So that thing is already made by me, because I was just waiting for the one opportunity. If the webinar was not conducted, I was trying to make a webinar, and now the things have changed. In my Insta profile itself, I have written that I used to conduct webinar, workshop, this thing. So thank you, Naveen sir, for giving the opportunity. And sir, as soon as the meeting session ends, so I would love to give you a call back, because I love to coach people, sir. I don't know how it gets into it, but yes, I love to coach people. And when the people got selected, then the excitement got doubled. कि यहाँ हो गया, अच्छा, one is working in Delhi, अच्छा, another Bhubaneswar. So sir, मेरा एक target है कि I have to coach 1,000 people. Now 150 have been crossed, and ये चीजें हैं सर। So I would love to talk to you again after the Surely, आप मेहनत करते चलिए, सरस्वती पे ध्यान दो, लक्ष्मी अपने आप खींची चली आएगी। And one day I am seeing you having a collar mic, standing on a very big opera stage, and there will be people around the world who will be listening to you. Just focus on your content, और yes, पैसे को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। पैसा अगर आपके पास सरस्वती है ना, तो पैसा अपने आप खींचेगा। आशीष, यू आर इन टीचिंग बिजनेस। आई हैव बीन, मैं ट्यूशन का बहुत बड़ा मतलब वो किया हूँ, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, काम किया हूँ। आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स, और मैंने यही देखा कि अगर आप दिल खोल के उतना ही मेहनत करते हैं, जैसे मैं हमेशा एक बोलता हूँ, आशीष, आई विल टेक 1 मिनट ऑफ ऑल द एंटायर ऑडियंस ऑल्सो, कि छोटा टीवी से 70 mm तक पहुंचने वाले कितने लोग थे, मतलब कितने टीवी स्टार जो हैं सुपरस्टार बने। सो यू विल से शाहरुख खान वाज वन हु स्टार्टेड इन सर्कस एंड फौजी, तो वो वहां से इतना बड़ा स्टार कैसे बना? बहुत सारे आज भी टीवी एक्टर हैं जो इतने बड़े स्टार नहीं बन पाए। सो आई डिग आउट व्हाट वाज द थिंग व्हिच मेड शाहरुख मूव फ्रॉम अ छोटा टीवी टू ए 70 mm। तो मैंने देखा कि वो आज करीब 50 करोड़ ना कितना करोड़ लेता है, डोंट नो। उसमें वो पैशन और वो जो उसकी जुनूनियत है ना, आज जब वो 50 करोड़ का आदमी है, वही जुनूनियत से उसने ना एक्टिंग तब की थी जब वो एक फौजी सीरियल और या सर्कस सीरियल में करता था। सो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे को यार 5,000 पर सीरियल मिलेगा। वो सर्कस ना 5,000 रुपीज पर एपिसोड करता था। उसने उस 5,000 को साइड रख के ना 50 करोड़ की मेहनत डाली, तो वो बन गया 50 करोड़ का। तो सेम थिंग इज इन यू, कीप द पैशन लाइव, light it every day, work hard more than your students, and definitely one day you will be on the pinnacle and the esteemed trainers आप बनेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो समय में ज्यादा ना लेते हुए आशीष जी आपसे बाद में बात करूंगा मैं। Okay, thank you, sir. Thank you. So again, if you're having any doubts, feel free to ask. We have certain time sets. Please do ask one by one, and kindly please cooperate. अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आप सुनिए, प्लीज पीछे हो जाए, बैकआउट मार लीजिए वहीं से। सो एक एक करके
You can ask any kind of questions. My juniors, my seniors, any one of them, do ask any question, because I think मेरे पास हर एक चीज का जवाब है. Do ask. Any student, any kind of student of my crash course. I guess क्रैश कोर्स में लोगों को ऑलरेडी क्लियर है, तो कुछ पूछने का सवाल तो बनता ही नहीं है. 15 दिन मैंने दिया है. एंड दिस वन मोर थिंग गाइस, द एफर्ट व्हिच आई गिव, अगर आप उतना दोगे तो यार फिर क्या ही बात है. यू कैन इजीली क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, यू कैन इजीली क्लियर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू. So again, if you're having again 67 students are there, some of them are faculty members. If you're having any doubts regarding छोटा सा भी ना interview में छोटा सा भी doubt, you can ask another free of cost. Feel free to ask anything from my college life, anything you can ask. Thank you so much, brother, for great session. Okay. Rahul. Okay, Rahul. Welcome, buddy. Welcome. So Rahul is one of my friend, and he is also joining in my crash course because he want to work in airline sector. He has वो civil engineer है, उसका mind divert हो चुका था. So I thought कि buddy, I have many students got selected. Why don't you join? Why are you wasting your dad's money? Please, as simple as that, join the Rahul. I guess I will send you the meeting link because guys, tomorrow कल से classes चालू हो रही है. So please, जिन students की जो courses pending थे, please cooperate, right? There are certain things, but I promise that I will give you best. Literally, I give you best content ever. Okay, Thank you guys. so much. Thank you. Aman, Bhuvnesh, Diksha, Gitanjali, I guess, MRK sir, Nipa, and these are my students. Riaz, Papa, Shivangi, I guess, Sushil. So these are the things. So guys, if you're having any doubts, I have cleared each and everything. And for government exam also, please do prepare. घर में बैठ के prepare मत करो. Please do job, and that will be helpful for you. That is much better, I think, in my opinion. You can ask anything, guys. Feel free to ask. Bhavesh, okay, guys. So, what is my mindset beginning of the college? My mindset at the beginning of college. My mindset what beginning of the college, because एक ही mindset था कि I have to anyhow complete the graduation and armed forces join करूंगा, क्योंकि वो चीजें 12th में छूट गई थी मेरी. So जब मैं उस समय था तो मेरा एक ही mindset था कि जैसे ही क्लास खत्म होगा I have to जो है join armed forces, ये करूंगा. 12th में मैं select नहीं हुआ था ना NDA के लिए. So I was only one mindset की ग्रेजुएशन खत्म करनी है, anyhow ग्रेजुएशन खत्म करनी है, और एक चीज और mindset था कि NCC भी ज्वाइन कर लेता हूँ और उसे भी खत्म करनी है. दोनों चीज को खत्म करना है एंड anyhow manage to join defense services ज्वाइन करनी है. ये बहुत ही अच्छा माइंडसेट था मेरा, बट नहीं हो पाया. सो बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें थी, दैट्स नॉट फिट फॉर आर्म फोर्सेस. नो इश्यूज, हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करता. तो वो चीजें, दैट वाज द माइंडसेट इन माय कॉलेज डेज. एंड आई डू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग. सर्टिफिकेट भरे पड़े हैं मेरे पास. सो आई डू पार्टिसिपेट. छोटी चीज नहीं पार्टिसिपेट किया मैंने. लेक्चर, हाँ, पैसे वाली चीजें में थोड़ा सा मैं हिचकिचाता था, लेकिन फिर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया. मैंने एनसीसी का एनएसएस भी किया इन माय कॉलेज डेज. 1-2 साल किया. आखिरी में एनसीसी खत्म होने के बाद. सो दैट्स अ क्रिएटिव स्किल थिंग, क्रिएटिव थिंग. एंड यस, मल्टीनेशनल डू गिव. क्योंकि देखो एक चीज और, मल्टीनेशनल को ऐसे आदमी नहीं चाहिए जो मतलब पढ़ता हो. उन्हें ऐसे आदमी चाहिए जो सोशली अडेप्टेबल हो. उन्हें ऐसे आदमी चाहिए जो लोगों की सुने. वो ऐसे आदमी चाहिए जो काम कर सके. उन्हें ऐसे आदमी चाहिए जिन्होंने कॉलेज में काम किया हो, तभी तो आगे जाके काम करेंगे. अच्छा, ग्रेट इंस्पिरेशन आकाश यादव. Thanks buddy, है ना. डिफेंस एस्पिरेंट. सो गाइस, if you want to knowledge about defenses, I can also, हाँ, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ बात अलग है, लेकिन हाँ, I can guide you a lot. SSC exam strategy was to first focus on the reasoning. जो चीजें मुझे आती थी, I focus on that thing, as simple as that. मैंने ज्यादा फोकस उसमें किया जो मुझे नहीं आता था. क्वांट, as simple as that. रीजनिंग में मैंने फुल फोकस किया. 50 में से जो है मेरे कितने मार्क्स आते थे? 45 नंबर आए थे. और इंग्लिश में 50 में 40. ये चीजें हैं. और मैंने एग्जाम भी वो चूज किया जिसमें एनसीसी का एक्स्ट्रा एडवांटेज था. सो उसके भी 10% एक्स्ट्रा थे. सो ये चीजें हैं. व्हाट आर द क्वेश्चन? हाउ डू यू मैनेज टू? अच्छा, हाउ आई मैनेज? यार, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ना. समटाइम्स रियलिस्टिक चीजें बताऊंगा, हवाबाजी नहीं बताऊंगा मैं. समटाइम्स कॉलेज अटेंडेंस वाज लेस बिकॉज एनसीसी का कैंप था. एंड समटाइम्स but college gave me that BOA, so anyhow manage that thing. Now
इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. दैट वाज अ रीजन कि 70% ही ला पाया मैं, 71% लेके आ पाया. और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट. दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर जहां चाह है तो राह है. इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट. ये चीजें, हाँ, आई गेस गाइस नो, आई नो वैकेंसी का इंतजार है, क्योंकि हमने लूजिंग हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस. आशीष गुप्ता आज आफ्टर लूजिंग SSB attempts, how you, buddy, there is no stress because चीजें सामने हैं. It's a test of, it's just a test of personality. हाँ, मेरे अंदर कुछ कुछ क्लॉजेस थे, मैं आपको बताऊंगा. फील दैट कि मेरे अंदर वो थोड़ा नहीं था कि मैं लोगों की बात सुनूं. इस टाइप का मेरा एटीट्यूड नहीं था, और ये सब चीजें उन्हें SSB में पता लग जाती थी. सो अगर कोई आर्म फोर्सेस का आदमी है, वो अपने सीनियर की बात नहीं सुन रहा, तो वो आर्म फोर्सेस खराब हो जाएगी. सो दैट इज द रीजन कि आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. आई थॉट कि इफ आई एम नॉट फिट फॉर द जॉब, नो इश्यूज, I joined some other thing. I was working for the airlines, and there is nothing like that. Failure to yaar, I guess, is a very small thing of life. I gave 16 attempts. I didn't got selected. मेरा last video viral हो गया, 1.9 million views. कि मैं बैग लेके नहीं कर रहा था. There was a smile in my face. Do watch it if possible. So nothing like that. Learn from it. SSB is not everything. I guess लोग, जो मैंने गलती की है, लोग एक mindset लेके चलते हैं, करूंगा तो यही करूंगा. Please ऐसा थोड़ा मत करो. And if got failure, do give another attempt, as simple as another attempt. लेकिन हाँ, एज खत्म होने के बाद थोड़ी ना अदर अटेम्प्ट दे सकते हैं. एज खत्म होने के बाद अदर अटेम्प्ट नहीं होता. वो एक सर्टेन एज तक रहता है कि अदर अटेम्प्ट, ओहो वी हैव नेक्स्ट अटेम्प्ट. बट आफ्टर 25 अटेम्प्ट बचे ही नहीं, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं है. सो प्लीज, इफ यू आर NDA अटेम्प्ट, डिफेंस अटेम्प्ट, एफकैट अटेम्प्ट, कोई भी अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, जस्ट गो एंड बैंग ऑन. जस्ट प्रिपेयर्ड हार्ड, गो एंड गिव द इंटरव्यू. लेस बाकी असेसर के ऊपर छोड़ दो. पसंद आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे. एज सिंपल एज दैट. इसमें सोचना क्या इतना. हाँ, शुरुआत में मैं बहुत रोया था जब स्क्रीन आउट हो गया था, तो क्योंकि हम तो रिकमेंड होने के सपने सजा के गए थे कि हम वो करेंगे. ये है पहली बार में मैं रिकमेंड होकर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पकड़ूंगा एकेडमी में. सो आई वाज समथिंग लाइक दिस. आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड. स्क्रीन आउट फ्रॉम भोपाल, फर्स्ट अटेम्प्ट, NCC स्पेशल एंट्री. सेकंड अटेम्प्ट, स्क्रीन इन. So these were the things. So I cried. Later on, I came to know that it's just a process. So, agar if you didn't get selected, nothing like that. Do something else. Life is much more better. Even though the things, baat aati hai, my friends earn certain amount of money. They are working as an officer in armed forces. I do earn more 50,000 more than them. तो ये चीजें हैं. अब तो थोड़ा मैं साइड भी हो गया हूँ सब चीजों से. Now interest is more in coaching. So guys, please, if you got fail, nothing like that. It's just a small part of life. Learn from it and do give another attempt. But yes, when age bar crosses, you can't give attempt. Do something else. As simple as life is much more better than armed forces. ये चीजें. This is my opinion. My opinion. Absolutely my opinion. So these are the things. Okay, guys. Other doubts? What do you learn from failure? Please put your views. Yeah. So what I learned from my failure. First attempt. आई लर्न फ्रॉम कि पिछले बार जो गलती हुई इस बार नहीं करूंगा. पिछले बार मेरी जीके कमजोर थी, तो इस बार मैं जीके पढ़ के जाऊंगा. दूसरी बार मेरी कमजोरी थी कि मैं जो है जीडी में मैंने ज्यादा ओवर पावर हो गया था, तो इस बार जीडी में आई विल जस्ट स्पीक 1 पॉइंट देन बैक देन 1 पॉइंट देन बैक देन 1 पॉइंट देन बैक. ये स्ट्रेटेजी. फिर देन आई केम टू नो कि मैं वहां के लोगों से बात नहीं करता हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इस बार बात करेंगे, उनसे अपनी दोस्ती करेंगे उनसे करके. So from every failure, what analysis plays a very important role. After every attempt, I used to give analysis कि इसमें कहाँ गलती हो गई. डायरी है एक, इस डायरी में I used to write कि कहाँ गलती हुई है. So जब तक गलती तो हुई है पता चल गया, बट when you think ना कि गलती को मैं improve कैसे करूं, उस गलती को भरना जरूरी है, गड्ढे को भरना जरूरी है. अगर वो गड्ढा नहीं भरेगा then again you will do the same mistake. है ना. GTO समझ में नहीं आया, GD समझ नहीं आया, इंग्लिश नहीं सुधारी, इस बार नहीं सुधारी, अगली बार नहीं सुधारोगे, बाहर हो जाओगे फिर से. नॉर्मल थिंग. तुम नहीं तो कोई और काम कर लेगा. जरूरी थोड़ी ना कि यही काम करेगा. देयर वेरी लॉट ऑफ पीपल. 400 लोग आते हैं, 20 गेट स्क्रीन इन, एंड बीच में मैं था. सो देयर माइट बी सम क्वालिटी, देयर माइट बी सम OLQs. कुछ हद तक ऑफिसर लव क्वालिटीज है मेरे पास, लेकिन हाँ, जिस लिमिट पे चाहिए वो नहीं है. सो नो इश्यूज. सो इन माय लास्ट अटेम्प्ट ऑफ कपूरथला, 400 people were there. SSC technical entry थी, and 20 got screened in, and yes, my chest number was 18. तो ये चीजें हैं गाइस. सो इफ यू गॉट फेल, प्लीज डू ट्राई अगेन. नो इश्यूज.
लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर फेलियर से नहीं सीखा देन कुछ नहीं हो सकता यार, देन फिर सरेंडर है जिंदगी, अगली बार फिर गलती करोगे। ओके गाइस, लेट्स सी द अदर डाउट्स। Getting answers is all about effortless. You deserve get future in your coaching is a revolution. That's a love tone from defense. Keep it up, buddy. Yeah, Akash Jadhav, है ना buddy. We will change the revolution. I just need a support, and I know very well that how to divert the things, how to coach each and everything. So we will Akash, we will create a revolution na, and we will जो जितने भी coaching institute which charge a day 1,50,000 rupees, 2 lakhs, something like that, very high charges, we just reduce it ना 2,000 rupees. तो फिर देखो यार, जब फीस कम होती है तो कौन 1.5 लाख देके कौन पढ़ेगा? जब तुम्हें वही चीज 2,000 रुपए में मिल रही है तो 1.5 लाख कौन देगा? अरे मैं ना दूं, बाकी स्टूडेंट्स ना दे। जो चीज लोग 1.5 लाख रुपए में पढ़ रहे हैं, मैं वो चीज तुम्हें 2,000 रुपए में पढ़ाता हूँ। यू ऑल्सो नो दैट इज द रीजन की कोचिंग चल रही है। राइट, पीपल यूज्ड टू लर्न दैट थिंग बाय पेइंग लाख ऑफ रुपीज, 80,000, 90,000 they are paying, and I just coaching in this 2,000 rupees. So yes, quality matters a lot. So we will create a revolution, na? We will create a revolution. So just be with me, guys, na? We will change. Things will get changed, especially in aviation industry. Yeah, Akash. So guys, I want to thanks Akash Jadhav for the, he is a lawyer, and one day I got stuck in some case. One company sent me a mail, so I was got stuck in some case. I was very much disappointed. What should I do? So I consulted lawyer, and Akash is one of my friend who I met randomly in Instagram. So with any kind of deals happen with the law cases and all, so Akash, I used to take suggestion from Akash, and he is very supportive when it comes to any kind of cases and all. So I have deal with this kind of things. I was very disappointed, but yes, things got changed, and Akash helped me a lot. So law की भी जानकारी बहुत रहना जरूरी है. So Akash, we will change ना, we will change. Just Akash, keep supporting ना, keep supporting. Okay guys, next question. How you to be confident? Okay guys, है ना, ये चीजें लोग बहुत सोचते हैं, शाय प्रॉब्लम, मैं क्या करूंगा, है ना, वो देख रहा है कहीं वो मेरे बाल को तो नहीं देख रहा, ओके कंघी कर लेता हूँ, कहीं मेरे कपड़े को नहीं देख रहा, ओके ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। सो यार प्लीज डोंट बी शाय, वो नौकरी का इंटरव्यू है, मॉडल का इंटरव्यू नहीं है। जस्ट गो एंड बी योरसेल्फ। अगर डर रहे हो तो डरते डरते दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेना होगा तो ले लेगा, नहीं होगा तो दूसरी बार दोगे, ठीक है। डर डर लग रहा है इंटरव्यू के सामने, शाइनेस शाइनेस यार ये बताओ क्यों होता है? शाइनेस हैपेंड बिकॉज वी आर फर्स्ट, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, दैट इज अ रीजन शाइनेस। मैंने 12th से दिया था, मैं 12th से दे रहा था, 12th में मैं कोचिंग करने गया था, मतलब इंटरव्यू की प्रॉपरली एसएसबी की कोचिंग, ये चीजें, तो शाइनेस मेरी वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे बाकी किसी कोई करता नहीं ये सब चीजें। तो वो चीज जो मैं 12th में डील कर चुका था, वो लोगों ग्रेजुएशन के बाद चालू हुई डील करना, ये चीजें हैं। So guys, if you are shy, don't be shy, because it doesn't matter to interview that you are shy or not. हाँ, if you're not confident, he will not select you. He will select some other candidate जिसके पास confidence है। उसको तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, as simple as that। उसे मैन पावर चाहिए, उसे उसने वो सोच क्या है इंटरव्यूअर की, घर से मैं जो है 5 लोग को सेलेक्ट करूंगा भाई। अब 5 लोग को, 5 बेस्ट लोग को सेलेक्ट करेगा वो, क्योंकि थिंक ऑफ इट, आपके घर में कार है, आपके घर में कार है, आपको ड्राइवर चाहिए, तो आप 5 बेस्ट ड्राइवर को चुनोगे ना भाई, किसी को भी थोड़ी ना उठा लोगे, लाइसेंस नहीं है किसी को भी थोड़ी ना उठा लोगे। यू विल चूज 5 बेस्ट ड्राइवर जो कि अच्छे से काम करें और बाकी काम भी आता हो, समय आने पे कार रिपेयर कर दें वो भी आता हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो डील कर सके ऐसे आदमी। तो एयरलाइंस आर लुकिंग फॉर द ऐसे आदमी जो मल्टीपल अप्रोच रखें, दोज हु आर डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक, ये चीज है। और एक चीज और, लोग अपना सीवी, लोगों को सीवी बनाना नहीं आता, एक चीज, हाउ टू गेट नेगेटिविटी, अरे नॉर्मल चीजें है ना देखो यार, नेगेटिविटी का बता रहा हूँ ना, आई हैव डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मैं हर एक चीज से डील कर चुका हूँ, कोई ऐसी चीज बची नहीं जिससे मैं डील नहीं किया हूँ। सो नाउ कमिंग टू द नेगेटिविटी। नेगेटिविटी ये छीन है कि पीपल विल जो है जैसे कमेंट मारना कि ये तो खराब है, ये आदमी खराब चैनल है, ये ऐसा है वैसा। तो कंपटीशन जहाँ पे होगा, nowadays people they used to do anything, so नेगेटिविटी का गाइस कुछ नहीं बोल सकते, जस्ट अवॉइड इट। ऐसे मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ये है वो है ऐसा वैसा, तो प्लीज डू अवॉइड उसका, उनको उनको सुधार के टाइम वेस्ट मत करो यार, आई डोंट वेस्ट टाइम। अगर कोई आजकल तो ऐसा हो गया, कोई कमेंट मार तो देखना ही बंद कर दिया हूं मैं, नेगेटिव कमेंट। सो प्लीज, नेगेटिविटी इज अ नॉर्मल थिंग, पीपल वो पीछे खींचेंगे खींचेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, भड़काने का काम, ये आपस में भिड़ाने का काम। सो लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग इट, दे आर जस्ट अनएम्प्लॉयड, एज सिंपल एज दैट, दे डोंट इवन वर्क फॉर सिंगल पनी। अगर जो काम कर रहा होगा
वो ये सब चीजों में नहीं सोचता। नेगेटिविटी, प्लीज डू अवॉइड नेगेटिविटी। और एक चीज और, कुछ गलत तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो यार, टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं तो सोचना बंद कर दिया है, ये है हेट कमेंट, ये कमेंट, नेगेटिविटी, ये वो, डोंट थिंक एज सिंपल एज दैट, अवॉइड इट। जैसे कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं ये क्यों कर रहे हो, ये कर, आई जस्ट यूज टू अवॉइड। कोई सेंस नहीं उनका जवाब देने का, क्योंकि समझ में आना होता तो बहुत पहले समझ में आ चुका होता। डोंट वेस्ट टाइम फ्रॉम नेगेटिविटी। इफ समथिंग देयर काइंड ऑफ नेगेटिविटी, डू मेक फ्रेंड्स दोज हु आर पॉजिटिव। तो फिर वही घूम के चीजें वहीं आएंगी और वहीं से फिर चीजें होगी। सो प्लीज गो फॉर पॉजिटिव अप्रोच rather than going for the negative one. This is my request. Rest your choice. बाकी backbullying, हाँ एक चीज और, when you go for the working profession there will be a lot of backbullying, है ना, लोगों को गिराने की कोशिश, ये सब चीजें बहुत चलती है। सो वर्क हार्ड फॉर इट, एंड द वे यू वर्क हार्ड, ये सब चीजें हैं। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो खुद करना छोड़ देते हैं। बिकॉज हुआ क्या, इट्स कंपेरेटिव इंटरव्यू आफ्टर द क्लीन शेविंग। यस नीतीश, इट्स मैटर्स इन मल्टीनेशनल कंपनी यार, क्लीन शेव, इट मैटर्स, यू लुक स्मार्ट इन क्लीन शेव। हुआ क्या, आजकल के कॉलेज में ये ट्रेंड चल रहा है कि बियर्ड रखेंगे, बियर्ड, ये चीजें हैं। सो यार, एज सिंपल एज दैट, इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट है दैट टू बी स्मार्ट। नीतीश, मेरी कंपनी है, मेरे को क्लीन शेव चाहिए, आना है तो आ, वरना फिर बियर्ड रख के भाई बाहर से रिजेक्ट, यू कैन गो। सो कंपनी की रिक्वायरमेंट देखो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें लिखा है कि ये चीजें स्मार्ट पीपल दे आर लुकिंग फॉर। सो प्लीज अवॉइड टू बी क्लीन, अवॉइड टू हैव अ बियर्ड। और एक एक चीज बताऊं, सिंपल फैक्ट बता रहा हूँ यार, क्लीन शेव करने से नौकरी मिल रही तो ले लो ना यार, क्या दिक्कत है, क्लीन शेव करने से नौकरी मिल रही है, इसमें कुछ इतना कुछ खास रखा नहीं है गाइस, प्लीज। वैसे भी आजकल लोग मास्क पहनते हैं। सो प्लीज डू अवॉइड कि मैं जो है वही करूंगा, दाढ़ी रखूंगा। लुक्स पे उतना फोकस मत करो यार, लुक्स डजंट मैटर, कितनी बार बता चुका हूँ, लुक्स डजंट मैटर, क्लास में भी बताया है कि looks doesn't matter. The only thing matter is that your confidence, communication skill, and third thing, which I coach in my crash course. ये चीजें हैं. So please be confident. And if you're not confident, you're shy, go and give the interview. क्या होगा? Fail हो गए? Go and give another interview. क्या होगा? Fail हो गए? Go and give the other interview. You will pass. Right? ये चीजें हैं. और when it comes for airlines, some tips I want to share, that please go, if you go for the interview, do prepare the job responsibilities. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करके जाओ, क्योंकि वो चीज पूछते हैं। बाकी अगर आपको और जानना है कि क्या पूछते हैं और उसके रिस्पॉन्स क्या है, और इफ आई से कि इफ द इंटरव्यू आस्किंग यू ना कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, सो लोग क्या करते हैं, मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, लोग करते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रैंडम नेम एक्स एंड माय फैमिली नेम इज दिस। यार फैमिली के बारे में थोड़ी ना पूछ रहा है, पूछना होगा तो पूछ लेगा, व्हाट योर फादर डू, एज सिंपल एज दैट। सो प्लीज गाइस, व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन, बी प्रिपेयर्ड, है ना, पहले से प्रिपरेशन करके जाओ। एग्जाम तो है नहीं, प्लीज डू प्रिपेयर 15 डेज 20 डेज प्रायर, तभी इंटरव्यू निकलता है। एक दिन फिर तो क्या ही है, तुक्के से निकल के उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों का तुक्का लग भी जाता है, लेकिन तुक्के की बात नहीं चल रही यहाँ पे। Medical test, yeah, I guess Riaz, I have told you that I will make a video on medical test, but sorry guys, I was not able to make, but yes, soon I will make a video on medical test. Hello, yes, any doubts? So I will make a video on medical test. Let me tell you what are the things they check. They used to check eyesight. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आई चेक करने की, ये अगर आंख खराब होगी तो आंख ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। Go and give the interview, as simple as that. Go and give the medical. The things which they check is that आई विजन है कि नहीं है, स्पेक्स के साथ 6x6 है कि नहीं, चलो पावर कुछ हो गया, ये स्पेक्स लगाओ, 6x6 होना चाहिए। आर यू एबल टू हियर और नॉट, दिस आर टू थिंग्स विच दे चेक। टैटू है कि नहीं, ये चेक करते हैं। रिक्वायरमेंट है एयरलाइंस की, करना पड़ता है, ठीक है। अगर अगर आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है तो कल की डेट में आप एयरलाइंस में बोलेगा कुछ और, सुन लो कुछ और लोगे, ऑपरेशंस होगा, दैट इज ऑपरेशंस, वहां डैमेज हो गया, सो कंपनी को लॉस होगा, एंड कंपनी लॉस इट मीन्स company defame, and company defame it means company no revenue, and company no revenue company loss. तो ये चीज है। so they used to avoid this kind of things. Please आप जो है मेडिकल का इतना मत सोचिए, और इतना कुछ बड़ा भी नहीं है। ये अगर आप सुन नहीं सकते तो मत ज्वाइन कीजिए, अगर आप देख नहीं सकते तो मत ज्वाइन कीजिए, बिकॉज एयरलाइंस में दैट इज देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, आपकी हाइट कितनी भी हो, वेट कितना भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, लेकिन हाँ, आंख देखना सही होना चाहिए और सुनना अच्छा होना चाहिए, दैट थिंग। अच्छा क्या, नॉर्मल, ये चीजें हैं गाइस। सो अगेन यू कैन आस्क एनीथिंग।
regarding aviation sector, regarding interview, regarding confidence. I have faced a lot of interviews. Oh, what are the perks from being? So guys, there are a lot of perks. Lot of perks. The first perk is that आप एयरलाइंस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो एक चीज और, मेरा बचपन से बड़ा सपना था कि यार मैंने तो एयरलाइंस में ट्रैवल कर लिया, अब मेन है कि मम्मी पापा को भी ट्रैवल कराना है। तो मैंने क्या किया, मम्मी पापा को ट्रैवल करवाया। दे ट्रैवल टू हैदराबाद, ट्रैवल टू गोवा, एंड दैट्स इट इन माय पे एंड पर्क्स। तो फर्स्ट पे एंड पर्क्स इज दैट अगर आप एयरलाइंस में हैं तो आप और आपके फैमिली मेंबर के साथ के 6 लोग, दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब आप एयरलाइंस में नहीं है तो आपकी टिकट लगेगी वो 5 से 6 हजार की लगेगी, लेकिन जब आप एयरलाइंस में हैं तो वही टिकट आपको लगेगी 900 रुपए। यू हैव टू जस्ट पे द टैक्स, you have to just pay. When will you get the answer of assignment? Nitish Kumar, in very next class you will get the answer of assignments, and I will tell you कि नीतीश ये चीजें सही है भाई, इसको ऐसा कर नीतीश, ये चीजें not even नीतीश, there are very people, चारू हो गई एंड नीतीश हो गया, रियाज हो गया, और भी जितने नए लोग आए हैं, से दिव्या आई है आज पढ़ने के लिए, है ना। तो ये चीजें हैं। सो आई गेस दिव्या माइट बी वाचिंग, मैंने उसको लिंक भेजा था। सो ये चीजें गाइस, सो be relax, leave everything on me. Until unless I am there, nobody can stop you to get into aviation industry, right? Nobody can. हाँ, एयरलाइन का क्राइटेरिया चेंज हो गया या पॉलिसी बदल गई तो वो बात अलग है ना, वो चीजें अलग है। यस राज, ना दिव्या, सो वो चीजें। आई हैव नॉट टॉक टू यू टिल नाउ। as soon as the session दिव्या मीटिंग एंड्स, I will call and I will give the briefing for the classes. ये चीजें हैं। सो एक चीज और, मैं इसमें कोई प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करता हूँ, यूज गूगल मीट प्लेटफॉर्म, एंड गूगल मीट इज थिंग विच आई यूज। फ्री थिंग्स है ना गाइस, फ्री थिंग्स, कॉस्ट कटिंग, मैं भी कॉस्ट कटिंग देखता हूँ। सो आई यूज टू यूज फ्री थिंग्स एंड पीपल विल गेट सिलेक्टेड, इट्स माय गारंटी, राइट। हाँ, एक चीज और, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करना है, लेकिन परफॉर्म तो आपको ही करना है ना। अगर आप वहां जाके वो बोल नहीं पा रहे, वो जो चीज पूछ रहे हैं उसके और जवाब नहीं दे पा रहे, तो कौन सिलेक्ट करेगा यार। सो ईच एंड एवरीथिंग इज स्पून फीडिंग, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको याद करना, जाके बोलना है। अब इंग्लिश नहीं आती, दो चीजें हैं, तो इंग्लिश रट के जाओ तभी इंटरव्यू निकाल लोगे, और या तो फिर इंग्लिश की तैयारी कर लो भाई। दो चीजें हैं, या तो इंग्लिश, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीख लो। दूसरी चीज है, इंग्लिश नहीं आती तो अब क्या कर सकते हैं, याद कर लो, है ना, याद कर लो। दो चीजें, या तो ऐसा डिपार्टमेंट भी मत ज्वाइन करो जिसमें इंग्लिश की जरूरत हो, डू ज्वाइन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जिसमें कम कम इंग्लिश आती हुई, तब भी सिलेक्ट कर लेंगे वो लोग, राइट। तो ये चीज मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि लोग तभी तो सिलेक्ट हो रहे हैं, तभी तो लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंग्लिश का जिसको नहीं आती वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा तो इंटरव्यू में तो फेल होना लाजमी है, लाजमी है फेल होना। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसे पता है कि मुझे ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तब पास होना लाजमी है। उसी इंग्लिश का तो डू, या तो इम्प्रूव कर लो, या तो है जैसा भी है, समय नहीं मिला, ये नहीं मिला, सो गाइज आई कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। आई जस्ट डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो या तो डिपार्टमेंट बदल दो, या तो दूसरा चीज है कि वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, या तो इंग्लिश इंप्रूव कर लो, या तो इंग्लिश याद करके चले जाओ, या तो क्वेश्चन आंसर जो मैं क्रैश कोर्स में बताता हूँ कि ये पूछेंगे इस बेस में, ऐसा होगा वो होगा, सो यू मेमोराइज इट। हालांकि उसमें पास होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ चांसेस तो हैं पास होने के। कुछ अलग पूछ देगा तो भले नहीं बता पाओगे, लेकिन देयर आर वेरी लेस चांसेस। बट आई विल सजेस्ट दैट प्लीज इंप्रूव द इंग्लिश। कब तक दूसरों के कंधों में रख के गोलियां चलाओगे यार, कभी ना कभी तो खुद परफॉर्म करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो खुद से करना ही पड़ेगा। कब तक जो है सहारा लेकर लोगे कि छुप छुप के सहारा, कि सामने से कोई आए पूछ मत दे तो साइड रास्ता बदल दिया। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे, शर्मिंदगी महसूस होगी। तो प्लीज इंप्रूव द इंग्लिश, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 महीना लगता है। देखो यार एक चीज और, इंग्लिश स्पोकन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ कुछ चीजें हैं जो टिप्स बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट स्पीकर करके एक ऐप है, तो आप लोगों से बात करें, है ना, लोगों से बात करें, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप करें। सेकंड थिंग इज दैट डू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड थर्ड थिंग इज दैट डू लिसन इंग्लिश न्यूज चैनल्स एंड डू प्रैक्टिस। 3 थिंग्स आर देयर। हाँ, हर एक लोगों का पढ़ा बताने का तरीका अलग रहता है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सीखा। कॉलेज में था, 2-2 घंटे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था, हितवादा करके भी पढ़ता था, आज भी आता है। इंग्लिश आसान रहती है इसलिए उसे पढ़ता था। हिंदू टफ लगता था मुझे, तो हितवादा पहले पढ़ता था, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, देन हिंदू। विच ऐप आशीष? प्रवेश जोशी इज स्पीकलर ऐप, इट्स फ्री ऐप, राइट। यू कैन ऑल्सो सी देयर वेरियस पीपल जो वहां पे टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई टाइम पास करते तो कॉल काट देना, देन फिर लगा लेना कॉल, नथिंग लाइक दैट। ये चीजें तो वो चीजें हैं। डू इन 3 फेज, लिसन, speak and read. These are 3 things. If you do it for regularly basis for 1 month, definitely you will increase the confidence and
you'll be able to speak English. And those who are in college days, for example, अब तो चीजें बदल चुकी है, so अब घर में ही हो तो घर में you can do lot of courses going in the market and do join the genuine thing. ऐसा नहीं कि ज्वाइन कर लिया दिन उधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कुछ. Please guys do join the genuine thing and that will help you to crack the things and do learn, है ना. कॉलेज में जो है पास तो सभी हो जाएंगे. Think of it. Not even for example X, not even X पास, Y भी तो पास हुआ है, Z भी तो पास हुआ है. आप ही थोड़ी ना पास हुए हैं. आपने तो थोड़ी ना ये अगल बगल से देख के लिख लिया भाई. जितने पास थे कॉलेज में, कॉलेज का फॉर एग्जांपल 2015-2019 का बैच था, 110 लोग थे, मान के चलो आज भी उतने ही लोग हैं हर एक बैच में, तो 110 लोग भी तो पास हुए हैं. आपके 92% आए हैं, अच्छा, बाकियों के भी तो 92% आए हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीजें वही थी जहाँ है. और हाँ, जो ज्यादा पढ़ते थे उनकी वैल्यू भले खत्म हो गई, लेकिन जो है बराबरी का कंपटीशन है आज भी उतना ही है. और टीप टाप के आगे भले बढ़ भी गए, लेकिन उसके कहीं ना कहीं तो जाके जिंदगी अटक जाएगी, और कहीं ना कहीं जहाँ मेरे टाइप का आदमी बैठा होगा वो वहीं अटका देगा. सो प्लीज ये चीजें हैं, डू लर्न, क्योंकि आज चीजें बराबरी की हो गई है. सबने ग्रेजुएशन कर लिया, सबने जैसे मेरे भाई है, सबने पास कर लिया ग्रेजुएट, सब ग्रेजुएट हो गए. मेरे कुछ दोस्त थे, अभिषेक सिंह नाम के, ईशान मिश्रा नाम के, तो हिमांशु, इनकी भी ग्रेजुएशन लगे हाथ कोविड में हो ही गई, लेकिन आज भी वो अनएम्प्लॉयड है गाइस. ये चीजें हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट. डिग्री भले अब आ ही जाएगी कोरोना में, लेकिन स्किल सेट, माइंड सेट, जॉब कहाँ से लाओगे. सो ये चीजें हैं. सो डू, इफ यू आर इन होम, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर. आई यूटिलाइज माय टाइम इन ओपनिंग अ कोचिंग. व्हाट यू डिड इट, do let me know if possible, right? You might have learned this kind of things, but yes, college can give you effort. You have to show extra effort. It's my opinion, I guess. मुझे लगता है करना चाहिए guys. Another doubts, we have another few minutes. Do ask if you are having any doubts, any queries. एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बराबरी का माहौल है, वहीं खड़े थे जहां सब खड़े हैं. 20 लोगों के इंटरव्यू में 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, 1 लोग सिलेक्ट होता है, एज सिंपल एज दैट. और एक चीज और, फ्यू टिप्स. फॉर एग्जांपल, दिस आर द पेड थिंग्स, बट लेट मी नो, है ना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो चीजें काम की है. इवन दो वो चीजें काम की है, लेकिन मेरे कॉलेज के भी तो लोग हैं ना. अगर मैं अपने कॉलेज के लोगों को प्रॉफिट नहीं पहुंचा पाया, उनके इंटरव्यू में हेल्प नहीं कर पाया, तो फिर मैं किस नाम का एलुमनाई. ठीक है. सो फॉर माय ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट, देयर आर फ्यू थिंग्स. व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, डोंट टेल that ki in future I will do this. When I was at Pune base, I went there to give an interview. There were many people who say कि sir मैं ना आगे जाके ना सर बदल दूंगी. Don't give a ऐसी casual response कि sir I am looking for the job because I want that badge. एक लड़का था मेरे बगल में, I want that badge, I want that badge, sir I want that uniform. ये कैसा response है भाई? Please don't this kind of बचकानी हरकत. Be give थोड़ा mature response कि मुझे ये badge चाहिए, वो चाहिए. I want to be a cabin attendant because I love that hat. Please don't do this kind of things. Answer ये होना चाहिए that sir I want to be a ground staff and I want to be a flight attendant because in my past experience I have done this kind of things, and if I join your company I can utilize the kind of experience which I have in my life. ये चीजें, something like that. Since age of childhood I was very much enthusiast, and नहीं थे तब भी बोलो ना, because he is giving you a job. So sir if I join this company I can give my best, I can utilize my old experience. यार किसको नहीं पसंद, किसको पुराने आदमी नहीं पसंद. ये चीजें हैं. So please ये मत बोल दो कि सर after when I go for any job interview don't say कि मैं जो है बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा. Please do learn something. वहाँ कुछ दिन सीख लो, उसके बाद बात करो तो थोड़ा जमेगा भी. स्टार्टिंग से मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसा कर दूंगा. Please don't say ये चीज. Some tips. Now some more tips is that be confident and एफर्ट लगाना मत छोड़ो. जिस दिन एफर्ट लगाना छोड़ दोगे उस दिन फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा. एफर्ट लगाना मत छोड़ो गाइस, है ना. एफर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. द डे यू स्टार्ट गिविंग एफर्ट यू आर जस्ट गोइंग टू डिग्रेड योरसेल्फ. आप नीचे आ जाएंगे, ग्राफ नीचे गिर जाएगा. ऊपर जा रहा था ग्राफ, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा. ये चीजें. सो नाउडेज आई यूज्ड टू डील विद द ग्राफ्स एंड ऑल, एंड डू रिसर्च. आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए, एंड किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करिए अगर कोई भी जॉब करनी है तो. I don't have an experience of mechanical industry. I joined airlines, so I have an experience of airlines industry. And again, we just need a graduate. Final year, so आप फाइनल ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसी ग्रेजुएशन खत्म होगा तब तो कर सकते हैं ना. So do apply, do give your CV if they think कि ये चीजें हैं, so they will call you. अब बात आ रही CV बनाने की, तो yes, I do coach people and I do make their CV.
अगर मैं चीजें बता दूंगा तो पता चला 2 लाख लोगों को वो वीडियो वायरल हो गया, 2 लाख लोगों के पास चला गया, लेकिन हुआ क्या एट द डे एंड? फिर एयरलाइंस के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। सर दिस इज माय okay guys, let me see na. Sir, in my call letter that you have to pay certain amount for training, so do I have to pay? If yes, how much? Buddy, as simple as that. I guess you might be talking about the new CSA exam ka interview. I will suggest you that please do research, for that kind of things. If they might charge 40,000 for all this kind of things, and I just charge 2,000, so they charge 40,000 rupees, and उसके बाद interview conduct फिर से होंगे, right? वो company वो जो है लोगों को coach करती है, they will train you and they will again conduct a placement for you all. Right? मेरे पास उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं कि मैं प्लेसमेंट नहीं कंडक्ट कर सकता, मैं तो लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयार करा सकता हूँ कि वो एक बार में क्लियर कर ले। मुझे वो पता है कि सामने वाला आदमी जो बैठा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे ये पता है कि वो किस तरह के लोग सेलेक्ट करना चाहता है। तो अगर किसी आदमी को प्यास लगे तो उसे पानी दोगे तो वो पी लेगा, दूध दोगे तो नहीं पिएगा। सो what requirement he is looking for, just show that requirement. Well, I guess I don't want to showcase each and everything of my paid things, so I guess do join the crash course and subscribe my channel Aviation Life. And आज भले ही कम सब्सक्राइबर हैं, 3,000 हैं, लेकिन as soon as the year ends it will cross 10K because I am giving extra effort, and YouTube is also promoting because the content is very good, right? YouTube is also promoting, and even though guys literally now you come to YouTube things, my channel got monetized in just 1.5 महीने में monetize हो गया guys, 1.5 महीने में। तो ये चीज है, 1.5 महीने में monetize हो गया, my channel got monetized। बहुत से लोग पूछते हैं कि इतना जल्दी कैसा monetize हो गया, monetize कैसे हो गया? It's just because of content। कंटेंट है तो YouTube है, नहीं तो फिर लोग देखते नहीं है, लोग नहीं देखते। उनके काम की चीजें बताओगे तो वो देखेंगे, तो वरना लोग नहीं देखेंगे। Many people do used to ask me about my YouTube, अब मैं क्या ही बताऊंगा guys, ये चीजें हैं। So any other doubts, any other thing regarding the interviews and all, है ना? You can ask anything, you can ask any doubts. I am जो है ये चीजें हैं। So if Shankara people will join or something like that, I can also give a discount to them to certain limits। ये चीजें हैं। हाँ, मैंने शंकरा के लोगों को भी पढ़ाया है ना गाइस, ये चीजें भूल गया। सो 2-3 लोग शंकरा भिलाई के भी थे, तो शंकरा भिलाई के लोग पढ़ने आए थे और मैंने उनको पढ़ा दिया गाइस, मैंने उनको पढ़ा दिया, शंकरा भिलाई के लोगों को पढ़ा दिया। और सच बताऊं तो मेरे बैच के थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मेरे बैच के हैं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया उन्हें। वो मेरे लव तनवर भिवानी के, सो वो चीजें हैं, मैंने पढ़ा दिया शंकरा भिलाई के लोगों को गाइस। हालांकि वो लोग इंटरव्यू देने नहीं गए, लेकिन वो चले गए, वो हो गया। सो अगेन वी हैव 5 minutes, do ask, then we will close the session, another 5 minutes, if not then we will close now itself. So again, any doubts, any queries? Again according to interview, something related to YouTube and all, I have a command in defense sector, in airline sector, in YouTube, in online coaching. These are the 4 things I know. मुझे कोडिंग पूछोगे, मुझे कोडिंग नहीं आती, हाँ, लेकिन इंटरव्यू में कैसे क्या करना है वो मुझे आता है। सो मैं कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए भी, वो क्या बोलते हैं, एक कंपनी है नोएडा में, उसके लिए भी मैं सिलेक्ट हुआ था कॉलेज से, लेकिन मुझे कोडिंग नहीं आती थी करके उन्होंने मुझे होल्ड में रखा था, लेकिन मैं सिलेक्ट जरूर हुआ था गाइस। ओके एवरीवन, एनी डाउट्स फॉर 5 minutes? 11:45 we will close the session. Any doubts? So the things are like that. Soon airlines are again back to the market and interview will be taken place. जिसके होल्ड के हैं इंटरव्यू होंगे। थिंक ऑफ इट यार, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, जब आपकी 2 ही कार चल रही हैं तो आप 100 ड्राइवर लेके क्या करोगे? 2 कार के लिए 2 ड्राइवर, ज्यादा से ज्यादा 4, एक दिन को चलाएगा, एक रात को चलाएगा। समथिंग अबाउट CS and IGA वाली वैकेंसी। नीतीश कुमार, IGI Aviation used to train people they used to train people and they used to जो है उनका प्लेसमेंट लगवाते हैं, प्लेसमेंट करवाते हैं, and those people get placed, they used to get job, and those people who got failed, they will not get job। ये चीजें हैं। Well, Piyush, I will suggest you to, if you are graduate, sir, tell me about SSB mains interview. Well, how many organize a daily schedule for a preparation? Well, just make a timetable, I guess यहीं पे कहीं पे था, I removed it। So according to the job, according to the requirement, for example, it depends on ना कि एग्जाम है तो एग्जाम का टाइम टेबल हो। अगर कोई
कोई स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स का टाइम टेबल हो. सो गाइस प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज व्हाट आई डू. इट हेल्प यू अ लॉट टू वेक इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये चीजें छोड़ देना थोड़ा सा. यार मैंने खुद दोनों ट्राई करके देख चुका है. रात को जग के भी मैंने वो किया है, तैयारी की है, और सुबह को भी किया. तो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट इफ पॉसिबल please do make a schedule that you wake up 6 o'clock. That help you a lot if you wake up 6 o'clock. Love Tanwar, what should I say? It's a 7-day process. It's a 7-day process. And it's a 7-day process. It will not be possible for the mains interview. I will suggest do watch some YouTube channel. There are a lot of people who are coaching and for YouTubes and all. ये चीजें हैं. Do watch Abhishek Pandey. Abhishek Pandey is best for SSB. मैंने जो सीखा है उन्हीं से सीखा है. And I use the Unacademy platform for the 4 years. सो एक चीज और है ना, ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ. जो सच्चाई से मैं गुजरा हूँ उस चीज से आप भी गुजर सकते हैं. कॉलेज के फर्स्ट ईयर मैंने अनअकैडमी का वो लिया था एंड पेड कोर्स एंड आई स्टडीड. मैं कोई प्रमोशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, सच्चाई है. एंड कंपटीशन एग्जाम के लिए आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं. ये चीज है, घर में बैठ के मैंने तैयारी की और देयर लॉट ऑफ फैकल्टी. और एक चीज और, वो सिर्फ 1200 रुपए में. क्यों चल रहा है वो प्लेटफॉर्म? वो प्लेटफॉर्म इसलिए चल रहा है क्योंकि 1200 रुपए में लोग उसमें जो है मैथ्स भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, जीके भी सीख रहे हैं, एसएसबी भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं सिर्फ 1200 रुपए में. तो 1200 रुपए में उनको मल्टीपल चीजें मिल रही हैं. तो जाहिर सी बात है, होगा ही ना. अगर आप कहीं भी घूमने जाओगे, मैं बोलूंगा यार 1200 रुपए में तो फ्लाइट भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, तो जाहिर सी बात है 1200 रुपए में तो करोगे ही करोगे. वही बोलूंगा 12,000 में यही छोटी सी चीज मिलेगी तो कोई नहीं करेगा. सो कम पैसे में ज्यादा चीजें देना, दैट इज नोन एज बिजनेस. एंड नाउ दैट इज द रीजन कि वो आगे हैं सबसे. कम पैसे में ज्यादा दे रहे हैं वो. तो वो चीज है गाइस. डू यूज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. लोगों को नहीं पता. लोग पीपल हैव अ फियर, बट प्लीज इफ यू आस्क फॉर मी, डू गो विद इट. एंड किसी भी चीज को ट्राई करो पहले, कंपैटिबल है कि नहीं है. डेमो मांगो, ट्राई करो. ट्राई किए, अच्छा लगा, ठीक, नहीं लिए तो अदर प्लेटफॉर्म. बट अनअकैडमी के साथ ऐसा नहीं है. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड इट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स जस्ट अ जेन्युइन ट्रूथ. 4 साल मैंने लिए, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एग्जाम भी निकाला यार, एग्जाम निकाला. अगर नहीं निकाला तो भले मैं बताता नहीं, लेकिन मैंने निकाला. Okay guys, let's take another doubt. How to improve communication speaking skills? Well, Tanwar, I guess मैं वही बोलूंगा कि आगे का नाम सही नहीं है, क्योंकि sessions are getting recorded. So Tanwar, I will suggest is that please, if you give an extra effort now on improving the English, then only you can. घर बैठे सोचूंगा सोते सोते इंग्लिश सीख जाऊंगा यार मैं, सोया उठा इंग्लिश सीख गया, या ये चीजें हैं तो पॉसिबल है ही नहीं. नथिंग, कोई पॉसिबल नहीं. वो गेम खेलते खेलते सीख गया. एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. दूसरी चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल. थर्ड, it requires extra effort, extra hard work. If you give it any age, doesn't matter. Extra hard work, extra effort. एक चीज और ना, दुनिया में कोई भी चीज सीखी जा सकती है. कोई भी चीज सीखी जाती है, समय लग लेता है थोड़ा सा. दुनिया में कोई भी चीज सीखी जा सकती है. ऐसी कोई चीज नहीं जो सीखी ना जा सके. सो इंग्लिश इज जस्ट अ स्मॉल थिंग. प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करो यार, तभी तो सीखोगे ना. मैं थोड़ी सिखाऊंगा वहां पे आके. एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. मैं किसी एक के ऊपर नहीं कर सकता उतना. I have a lot of students. How can I do that? So certain amount of student, but I give my best. So guys, please, I guess now I think close the session. And if you're having again any doubts, do subscribe my channel Aviation Life. And every day daily at 6 a.m. I used to come live. हाँ, कभी कभार लेट हो जाता है, लेकिन yes, daily live session. शादी थी तो लेट हो गया, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा. Sir, at last I would like to invite Pulkit Nath for giving a vote of thanks. Yeah, Thank you, Raghav. And now that we have come to an end of this talk, I, on the behalf of the Mechanical Engineering Association, would like to convey my heartiest thanks to Ashish Kumar Sahu sir for such an aviating and exciting session, which not only cleared our queries but also has been inspiration for all of us. We really thank you, sir, for enlightening us. I also thank our HOD sir, Dr. Naveen Jain sir, the event coordinators, Dr. Mayank Sharma sir and Hitesh Sahu sir, for being the pillar of our support, and all the faculty members for being a part of this talk. Thank you so much, everyone, for joining and patiently listening. Thank you, sir. Thank you, Ashish sir, for your time. Thank you so much. Okay, guys. So I think we should close the session. Okay, well, when some people say webinar attend, we will create another webinar, and I will try my best so that I can give to my college. What I've learned from my college, I want to give back to my college. And one day when my college students will get selected, and in the banner we will say that this got selected, this got selected. I guess if I will coach that much number of people, then to select hona lazmi hai na guys, select hona lazmi hai.
So guys, my next target is that if a Shankaracharya has given me an opportunity to conduct if a Shankaracharya Institute in which I studied SSI PMT Raipur, if they will conduct an opportunity to conduct a workshop in the college, I will definitely give my best, and I will make sure that every person from that college attend the interview and give the interview. If possible, think of it. If 100 people will give interview, most probably, if I will coach them, 80 or most probably 70 or 60 will get selected in airlines, and that airlines pay good, 20,000 rupees at least. So that will be in your hand. And उसके बाद decide करना कि क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है कि क्या करना है, ये करना है वो करना है, डू लेट बाद में डिसाइड करना, पहले नौकरी पकड़ लो, ये चीजें. So this was guys from my side, and I guess if I should leave, and because I have to coach people जिनकी 12 बजे से क्लास है, 12 से 1 लेता हूँ मैं classes. So thank you again, HOD sir, MRK sir, MEA Mechanical Engineering Association, SSA PMT Raipur, and Pulkit, our HOD, our president, MEA president, he coordinated with very well. We last day we talked, and every person who are here available. Thank you. Tripathi sir also, the director of our college, and our HOD sir and respective all teacher. Just because of you all, I'm here. If you might not guided me very well, I guess I might not be here. हो सकता है मैं कहीं भटक जाता है, कुछ और कर लेता. So thank you for आपने मुझे डांटा बचपन में, आपने मुझे सिखाया हर एक चीज, मेरी गलती की, आपने मुझे बताया कि ये चीज नहीं से ऐसे नहीं, इसे ऐसे करना है. अगर नहीं बताते तो मैं शायद सिर्फ उसी डायरेक्शन में करता रहता. तो थैंक यू अगेन फॉर ऑल द टीचर, मुझे डांटने के लिए, मुझे समझाने के लिए, और मुझे सही दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि दिशा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर दिशा निर्देश नहीं है तो फिर सेंसलेस है. मेहनत तो करनी आती, लेकिन किस दिशा में करनी वही नहीं पता, तो फिर जाना इधर है, जा उधर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि यार ये नहीं हुआ, हमें तो अच्छी आती थी लेकिन हम ये नहीं कर पाए. So guys, this was all about today's live session, and I want to thank you all, and again, heartiest thank you to our HOD sir and respected teachers. So guys, let's meet tomorrow or some other day, or if possible, conduct a workshop or webinar, some other webinar. So don't forget to subscribe my channel Aviation Life. Tab tak ke liye guys, have a very good day and bye bye. Take care, namaskar and jai hind to all guys. Bye bye everyone. Thank you sir. Thank you MEA. Thank you, sir. Thank you all. Bye bye everyone. Channel name is Aviation Life. पहले नंबर पे आएगा, सर्च करोगे तो. Bye bye everyone. Bye bye guys. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.